So last time we were talking about uh, the fifth unit. So the next unit is about the ratio analysis. Hello, is my voice clear? Yes, sir. Okay. I just share the screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Now the point arises कि when you will get the whole results, say profit and loss account, you have prepared this trading account, profit and loss account, and the balance sheet. So now you want to assess what is my position, right? So what are my profit levels actually, right? So you compare it with basically, right? So you take some ratios in the sense that you take some proportions so that you find out, you compare it, how much growth, how much liquidity is there, what sort of profitability is there. So there are certain ratios that are very important that you check, whereby you try to check whether you are solvent or not, whether there is liquidity or not. Or you can check it directly also, but there are certain methods by which you can find out okay, what is your profit levels, what are your profit level, what are your uh, short term solvency, what is your short term solvency, and what is your long term solvency. So आजकल तो सॉल्वेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा मुद्दा चल भी रहा है. You all know that everybody wants to know what is the solvency level of the company. Say, so what you will do, uh, so we will talk about the solvency ratio, liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, and the market test ratio. So there is a one long-term solvency ratio. Long-term solvency means what? You always try to check whether you will be able to pay off all your liabilities or not, right? And generally, we always check what about the long-term liabilities. Long-term liabilities, whether you will be able to pay off or not. So वो कैसे check करेंगे? So we have some mechanism with what amount you can pay off your liability. That is also the part of question. So you will always compare how much is my liability and with what part of the amount I can pay off my liability, or what assets I will include to pay off my liability. So it may be the situation whereby you are liquidating your company, say. So that means you will sell off all your assets, or you are not liquidating your company. Liquidating means you are not selling off your company. मतलब आप close नहीं कर रहे हैं company को. वो naturally you can't calculate the all assets. आप सारे assets नहीं ले सकते क्योंकि आप सारे assets बेच ही देंगे तो फिर रहेगा क्या. So you always see कि what is my uh, levels if I pay off all my debt with the help of selling off assets or other funds you have, है ना? So what sort of funds you have to calculate that. So in that case, what we will do, first of all, we will see the debt equity ratio, then the shareholders equity ratio, then the debt to net worth ratio, then the capital gearing ratio, then we will talk about the fixed asset to long term funds ratio, then the proprietary ratio, then the dividend cover, then the interest cover, and the debt service coverage ratio. One by one, I will talk about each of these ratios. First of all, debt equity ratio. This is the long term solvency we are checking, right? अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे चेक करेंगे, मतलब सॉल्वेंसी मींस व्हाट, कि हम कहीं बैंकरप्ट तो नहीं होने वाले. We will always check, right? So what we will do,
we will see the proportion between the two variables. अब two variables क्या ले रहे हैं हम डेट इक्विटी रेशियो में? डेट क्या है हमारा पहले तो? एनीबडी? एनीबडी? मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. डेट क्या है? डेट क्या है? Remaining amount. Sir, कर्जा? कर्जा. ओके, गुड. अच्छा, कर्जा भी कितना कर्जा? किस किस कर्जे को मानेंगे कर्जा है? वो तो कैपिटल भी फिर कर्जा है हमारे लिए. मैंने पहले बताया था, दैट इज आल्सो Yes, अ sir. लायबिलिटी फॉर अस, है ना? Yes, sir. सो द थिंग इज दो तरह का हम मैंने पहले बताया था, लॉन्ग टर्म लोन जो हम लेते हैं दो तरह से रहता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड्स रहते हैं वो तो हम पे ऑफ करें ना करें चल जाएगा काम, राइट? अगर हम नॉर्मल वे में देखें. बट इफ यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, so that generally you take for a longer time, but you have to pay off, है ना? पे ऑफ करना ही पड़ता है वो आपको. अगर शेयर होल्डर्स फंड्स का तो ये है कि अगर आप मान लो एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी, एट द एंड आप नहीं भी पे कर पाए तो कुछ पार्ट पे करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स नॉट दैट मैंडेटरी दैट यू हैव टू पे ऑफ, बट आपको बाकी डेट्स तो पे ऑफ करने ही पड़ेंगे, राइट? सो वो ये कह रहा है कि वन इज द डेट पार्ट विच इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन काइंड ऑफ, राइट? तो जो आप वो हम रेशियो चेक करेंगे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी. अब इक्विटी क्या है? इक्विटी वर्ड से ही आप देखें, ध्यान दें. इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड है, फंड मींस व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो शेयर्स में पैसे लगाए हैं, दैट टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द प्राइस ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? मान लो 1000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का हर शेयर है. जब भी कंपनी इशू करती है या तो 10 रुपीज पे इशू करती है या से फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. कितने पे इशू किया है, दैट इज नोन एज अ फेस वैल्यू, राइट? या 10 रुपए का इशू करती है या 100 रुपए का इशू करती है. जनरली कंपनीज ये अमाउंट लेकर चलती हैं. सो से उन्होंने 10 रुपए का इशू किया है शेयर, राइट? फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है. तो कैपिटल कितनी हो गई मेरी? 1000 इंटू 10,000 रुपीज हो गई. इज दैट फाइन? Sir, can you repeat? हाँ, ओके. पहले सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड समझते हैं, देन आपको रिमेनिंग समझाते हैं भी कैसे लॉन्ग टर्म डेट आएगा, राइट? अब शेयर होल्डर फंड क्या हुआ? मतलब शेयर होल्डर्स मींस जो शेयर्स जिनके पास हैं, राइट? शेयर्स किनके पास होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन हुए? जो हम नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, दैट इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्वली, दोज हु आर हैविंग इक्वल राइट्स, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट इक्विटी. दोज आर हैविंग द इक्वल राइट्स. ईच एंड एवरीवन हैव इक्वल राइट. चाहे वो उसके पास एक शेयर है और चाहे उसके पास 10 शेयर है, चाहे उसके पास 1000 शेयर है, नो इश्यूज एट ऑल, है ना? सबके पास इक्वल राइट है, वोटिंग राइट इक्वल रहता है उनके पास. Sir, it doesn't differ with the number of shares? नो डिफर. हाँ, नंबर ऑफ वोट्स आपकी कम हो गई ना, बस नंबर ऑफ वोट्स कम हो गई, बट वोटिंग पावर, जो एक वोटिंग पावर है वो तो हर एक के पास रहेगी ना. सर, तो जैसे किसी के पास 5 शेयर है तो वो उसके पास 5 वोटिंग पावर होगी क्या? हाँ, और 5 की हो गई उसके पास. यस यस यस. तो 5 के हिसाब से काउंट होगी उसकी. जिसके बाद 1000 है उसके Sir, बाद so 1000. equity shareholder has have same amount of capital they have invested, right? इक्वल व्हाट? पार्डन? Like क्या जो shareholder होते हैं, equity shareholder, वो कुछ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होते हैं ना? हाँ, जो आप नॉर्मल आप शेयर में मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं. अभी मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे नहीं आया हूं, राइट? अच्छा, एक तो ये चीज हो गई. वन इज दिस इज द शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स. समझ में आ गया बेटा? पहले ये देखिए आप. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो Yes, नॉर्मली हम इक्विटी जिनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, दोज आर नोन एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? और इक्विटी शेयर्स ही हम इशू करते हैं. इक्विटी शेयर्स कौन इशू कर सकता है? पहली बात, इक्विटी शेयर्स सिर्फ पब्लिक कंपनीज इशू कर सकती हैं. प्राइवेट कंपनीज
इशू नहीं कर सकती, राइट? यहां तक क्लियर है बेटा बात? This can Yes, be sir. issued by the public companies. This can't be issued by the private companies. Private companies का क्या मतलब होता है? They have their own private funds. Private funds का क्या मतलब? मेरे खुद के फंड्स हैं, या मैंने 2-4 लोगों से और फंड्स ले लिए, that are known as the private funds, right? The time I float the shares in the market, है ना? जब मैं फ्लोट करता हूं मार्केट में शेयर्स, तो शेयर फ्लोट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? दैट आई शुड बी अ पब्लिक कंपनी। मेरे को पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी इज ओनली अलाउड फॉर फ्लोटिंग द शेयर्स। उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। आपने मार्केट में इशू कर दिए शेयर्स, देन ट्रेडिंग आपकी होनी शुरू हो जाती है इन द स्टॉक मार्केट। बट आप फर्स्ट टाइम पहले शेयर फ्लोट करते हैं। दिस इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हो गए? मान लो हमारे पास 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और 10 रुपीज का हमने फेस वैल्यू रखा है उसका। सो कैपिटल कितने की हो गई हमारी? 10,000 की। 1010 10,000 की। अच्छा 10 हाँ 10 into 1000, यस सर यस सर ठीक है? इसको क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसको क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर फंड, फंड ठीक है? अब प्लस, अब वो कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब है? एक तो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट? अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं? एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, अपने कुछ शेयर होल्डर्स को इशू करती है शेयर्स, बट एट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। समझ पा रहे हैं? जो तो इक्विटी शेयर्स इशू होते हैं उसमें कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता। इनकम आए ना आए, प्रॉफिट होगा तो ही इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बट अगर प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं, सो जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, दैट इज से 10% एट द रेट ऑफ 10%, से एट द रेट ऑफ 14%, ऐसे इशू किए जाते हैं। दैट मीन्स उसके ऊपर फिक्स्ड डिविडेंड दिया ही जाएगा। इज दैट फाइन? यस यस ओके। बट फिक्स्ड डिविडेंड का क्या मतलब है? 10%, 14% मान लो उसने देना है, तो उसमें आपने इशू कर दिए, से आपने 1000 शेयर्स इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 14%, एंड उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू आपने उसकी भी 10 रुपीज रख दी, तो 10,000 हो गया। सो उसका 10,000 का 14% अमाउंट जो भी आएगा, दैट विल बिकम द डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज फिक्स्ड। आपको हर साल देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देना ही पड़ेगा, पहली बात आ गई। दूसरी चीज, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम पैसे देते हैं वो एक रेजिडुअल अमाउंट होती है। दैट मींस आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, जितना भी आपने कर्जा उठाया हुआ है उसका इंटरेस्ट देने के बाद, सारा प्रॉफिट आने के बाद, पहले आप इंटरेस्ट देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट देंगे जो भी आपने लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं उनको देंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। अब कोई पैसे अगर आपके पास बचेंगे, उसमें से भी आप डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा अभी मुझे री इन्वेस्ट इन दी कंपनी करना है और कितना पैसा मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है। दैट मीन्स, मान लो नाउ यू आर लेफ्ट विद, आफ्टर पेइंग ऑफ योर ऑल योर इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस पेइंग ऑफ योर डिविडेंड ऑन योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नाउ यू आर लेफ्ट विद से 50,000 रुपीज। और आपके शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के? 1000. यस So 50,000 will be divided by 1000. So each shareholder will get what? 50 rupees. अब मैं आपसे जो मेजर इसमें जो पार्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज द शेयर होल्डर फंड्स। अब ये जब कहीं भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स, सो वी आर कवरिंग व्हाट? द इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, राइट? अब लॉन्ग टर्म डेट क्या क्या हुआ? लॉन्ग टर्म डेट का मतलब है एनी लोन यू हैव टेकन फ्रॉम आउटसाइड। लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने कोई भी लिया है, इट वोंट इंक्लूड द ओडी, ओवरड्राफ्ट इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ऑलराइट?
So अगर आपने if you have taken any kind of the outside loan debt लिया है आपने, that will be divided by the equity shareholder fund. इस रेशियो को हम ज्यादा बढ़ने नहीं देते कभी भी. Any reason you identify? आपको कोई रीजन लगता हो क्यों नहीं बढ़ने देंगे? वन इज टू वन रेशियो अगर आ रही है आपकी, 1:1 की रेशियो आ रही है, दैट्स ओके. बट इफ इट इज 2:1, व्हाट विल हैपन? योर debt is double to your equity shareholder fund. What will happen? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे सर. that is the one of the situation. बट चलता रहता है कई बार, हम इतना उसमें वो नहीं जाते हैं. मान लीजिए अगर दिस इज द सिचुएशन, व्हाट विल हैपन? ना द डेट जिसने भी डेट दिया है, दे विल क्रिएट अ प्रेशर, राइट? दे विल क्रिएट अ प्रेशर. ओके, शेयर होल्डर्स कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट में चला जाए, क्योंकि डेट का एक अमाउंट का इंटरेस्ट जा रहा होगा, सो इंटरेस्ट में ही सारे पैसे जाते जा रहे हैं, राइट? सो दे नेवर वांट दिस थिंग. शेयर होल्डर्स को तो अपने पैसे चाहिए ना. दे वांट डिविडेंड. डिविडेंड कैसे बढ़ेगा? व्हेन ये दिस अमाउंट, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो कम हो रहा होगा. ओनली देन दीज शेयर होल्डर्स विल गेट द मनी ना. सो व्हाट विल हैपन? दे नेवर वांट दिस थिंग भी ये जो डेट है वो बढ़ता रहे हमारा, राइट? सो दैट्स व्हाई दे कीप द रेशियो बिटवीन 1:1. इससे नीचे ही रखते हैं वो रेशियो हमेशा, या रख लेंगे 0.5:1, बट दे नेवर अलाउ देम टू गो फॉर 2:1. बहुत सारी कंपनीज हालांकि 2:1 की भी रेशियो मेंटेन कर लेती है. वो ज्यादा जो ज्यादा उसमें रहते हैं, मतलब दे बिलीव इन भी डेट उठाकर आप काम कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. दे बिलीव इन भी डेट हमें ज्यादा उठाकर करना है. इट्स नॉट बैड, बट अगर ये इफ इट विल एक्सीड मोर, देन यू विल बी इन अ बैंकरप्सी सिचुएशन, राइट? क्योंकि आपका कर्जा ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके पास पे ऑफ करने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स फंड में से पे ऑफ तो कर पाएंगे. दिस इज द डेट इक्विटी रेशियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. दिस इज डेट इक्विटी रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी? वी कीप ऑन चेकिंग ऑन दिस थिंग, that what is my ratio between the shareholder funds and the long term debts towards the outside. Now now I will check what is my shareholders equity ratio. One is, मैंने पहले बताया that the shareholders की जो पैसे हैं, we always check whether that becomes what the capital. shareholders equity shareholders के पैसों को हम क्या काउंट कर रहे थे? एज ए कैपिटल. जैसे कोई पर्सन पैसे लगाता है कंपनी में, उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? कैपिटल. कैपिटल इज ए लायबिलिटी. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज आल्सो नोन एज ए लायबिलिटी. सो हाउ वी विल पे ऑफ? कल अगर मान लो कंपनी बिक गई, तो शेयर होल्डर्स का पैसा कहां से आएगा? सो दे सेज दैट we will pay it from what? Total assets. Total assets means only tangible assets. We won't consider over here the intangible assets. We will only consider the tangible assets. मान लो जैसे intangible asset है गुडविल. गुडविल भी एक एसेट रहता है हमारे लिए. हम एसेट साइड में उसको ट्रीट करते हैं, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसके मेथड्स भी कैलकुलेट करने के. हमने लिखी तो हुई है, बट उसको हम रिडीम नहीं कर पाते कभी भी. इन मनी टर्म्स हम कभी रिडीम नहीं कर पाते उसको, राइट? सो हियर वी विल कंसीडर ओनली द टोटल एसेट्स. हमने टोटल एसेट्स का मतलब है, हमने बैलेंस शीट बनाई, एसेट साइड पे हमारे जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं, बट ओनली टेंजिबल एसेट्स वी विल काउंट. वी विल सी व्हाट इज माय शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड, है ना? शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है? मान लो अभी हम बात कर रहे हैं 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो हम 10,000 हमें पे ऑफ करना है. और टोटल एसेट्स हमारे पास मान लीजिए पड़े हुए हैं 20,000 के. So what is my situation? Yes. Anybody? What's the question, sir?
इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप। My question is, say equity shareholders are there. इक्विटी शेयर होल्डर की प्राइस कितनी आ रही है, से 1000 into 10,000 rupees 10,000. million, and my total assets are say 20,000, right? Total of the asset is 20,000, only tangible assets. मेरा इस टाइम पे सिचुएशन क्या है? 1:2 का 1:2 का सिचुएशन है. So is it a good situation or a bad situation? Good situation. it's a good situation. It's a good situation, right? Yes, sir. So generally we maintain at a 1:1. मैंने पहले बताया मोस्टली हम 1:1 की रेशियो में ही चलते रहते हैं कि अगर कल खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाता है कंपनी का, तो शेयर होल्डर्स ये हमेशा चेक करता है कि यार मैं पैसे कैसे रिकवर करूंगा. वो कैसे रिकवर करेगा? वो एसेट्स, टोटल एसेट्स के ऊपर नजर रखता है कि मेरे एसेट्स कितने हैं. अगर वो सारे एसेट्स बेचने के बाद क्या मेरे पैसे आ जाएंगे? So here he always in the long term only. It's not in the short term. वो छोटे टर्म के लिए नहीं कभी भी सोचता है. लॉन्ग टर्म में क्योंकि हम अदर लोन फैक्टर्स भी कंसीडर करके चलते हैं, बहुत सारी अदर फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं. देयर मे बी सीजनल फ्लक्चुएशन. So it's not that we will think about be okay now we will find out how I will sell my assets and how I will recover my money. It's not like that. तो कुछ भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं. तो बट इन द लॉन्ग टर्म ही ऑलवेज सी कि कहीं हम सिंकिंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम डूबते तो नहीं जा रहे हैं. सो दे ऑलवेज कीप ऑन मेंटेनिंग दिस रेशियो, दैट इज द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज टू टोटल एसेट्स रेशियो. ऑलराइट. देन डेट टू नेट वर्थ रेशियो. नाउ द पोजीशन इज long-term debt divided by this net worth is what? When you include the reserves as well. आपने कोई reserves भी रखे हुए हैं, आपने कोई reserves maintain कर रहे हैं, तो how you will maintain that? आपने कुछ reserves भी रखे हुए हैं, तो long-term debt. Sir, what do we mean by reserves? What we mean by reserves? Okay, so what we do, हम क्या करते हैं, एक तो कुछ तो हमारे मान लीजिए आपने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया इस बार, राइट? अब आपको ये लगता है कि 50,000 ही मैं पूरा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, राइट? सो व्हाट यू डू, आप कुछ पार्ट उसमें से रख लेते हैं, राइट? Okay. आप उसमें से कुछ पार्ट रख लेते हैं और आप उसको मेंटेन करते हैं, और एवरी ईयर यू एड ऑन. बिकॉज मैंने पहले बताया, जब भी बिजनेस करते हैं हमने एक कंजर्वेटिव अप्रोच पढ़ी थी, Right. तो कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि यू हैव टू कीप सर्टेन रिजर्व्स. तो आप कुछ रिजर्व्स मेंटेन करते हैं. तो अच्छा, रिजर्व्स आप एक तो है कि ओनली एज इन द फॉर्म ऑफ फंड्स रख लेते हैं, और कई बार आप रिजर्व जो क्रिएट करते हैं अगेंस्ट पर्टिकुलर चीज के भी कर लेते हैं, बट दैट रिजर्व्स आर ओनली यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर थिंग ओनली. से मशीनरी के लिए आप कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर कंटीजेंसी के लिए रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट इज देयर, राइट? ओके, इज दैट फाइन? सर, कंटीजेंट मींस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी मशीन के लिए रिजर्व किया है, तो वी विल कंसीडर इट फॉर मशीन ओनली. यस यस यस. ओके. दिस इज जनरली नोन एज, आपको जब भी इसकी एंट्री मिलेगी, दैट विल बी नोन एज द रिजर्व्स एंड सरप्लस. आपको बैलेंस शीट में जब भी इसकी एंट्री मिलेगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से मिलेगी आपको. ओके सर. Okay, so we always see that one is my equity shareholders funds plus my reserves will become my net worth, and that will be what I will see ki whether I will be in the position to pay off the long term debt or not. यहाँ हम सिर्फ शेयर होल्डर्स के फंड्स देख रहे थे. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम आजकल आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, when you calculate this thing, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि रिच लिस्ट बनाई हुई है, इनकी रिच लिस्ट बनाई हुई है.
हु इज द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया से, मान लो रिलायंस के इनका मुकेश अंबानी है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, समथिंग लाइक दैट, देयर दे कैलकुलेट द नेट वर्थ ऑफ द पर्सन, वो इंडिविजुअल होती है, राइट? बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, व्हाट वी डू, we include what the shareholders funds plus the reserves they have. On that very basis we decide the net worth of the company. So we always see ki how much you will be able to pay off from the long term debt. ab long term debt kitna pay off kar payenge. Okay, then is the capital gearing ratio. Capital gearing ratio is the almost the inverse of equity shareholders fund, right? So here नहीं सर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का बोलिए, रेशियो है, सॉरी हाँ जी बोलिए सर हाँ जी, जो बोलिए। इक्विटी शेयर होल्डर का रेशियो है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए ये से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं करेगा। ओके, ओके सर। now question arises, what is my capital gearing ratio? Capital gearing ratio states that कि जितना मेरा लॉन्ग टर्म डेट चल रहा है उसका प्रोपोर्शन विद फिक्स्ड एसेट क्या है, राइट? उसके अगेंस्ट मेरे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, राइट? लॉन्ग टर्म डेट के अगेंस्ट मेरे, लॉन्ग टर्म फंड्स के अगेंस्ट मेरे टोटल एसेट्स कितने हैं। मान लीजिए इट्स नॉट डेट, इट्स लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है मेरे पास एक बहुत सारा पैसे पड़े हुए हैं, उसके अगेंस्ट मैं ये देखता हूं कि मैंने फिक्स्ड एसेट्स कितने लिए हुए हैं, राइट? सो दिस रेशियो इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक से मेरे पास 10,000 रुपीज है, राइट? सो आई हैव टू सी कि मेरे को 10,000 जो रुपीज हैं मेरे पास, उसमें से मैं फिक्स्ड एसेट पे कितने लगाऊं और नॉर्मल करंट एसेट्स पे कितने लगाऊं। समझ पा रहे हैं आप? Yes. से मेरे पास 10,000 फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हो गए मान लो, राइट? मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, तो आई हैव टू सी कि मेरे को उसमें से फिक्स पार्ट में कितने पैसे लगाने हैं और करंट पार्ट में कितने लगाने हैं। आई ऑलवेज चेक, राइट? लॉट मेनी पीपल डू व्हाट, बहुत सारे लोग फिक्स में ज्यादा लगा देते हैं। अगर फिक्स में ज्यादा लगा देंगे व्हाट विल हैपन? हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, राइट? आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, करंट एसेट्स में नहीं रहेगा पैसा। अगर मैंने पहले बताया हमें करंट एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, वो हमने किसमें पढ़ा था? वर्किंग कैपिटल में। उसमें क्या कहा था? इफ देयर इज ए एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल, है ना? दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, वी ऑलवेज चेक what is the proportion between the fixed asset and the long term funds. What is the proportion between the fixed asset and the long term funds? Then proprietary ratio. Proprietary ratio generally ownership ratio भी बोल देते हैं इसको हम। सर अभी हम जैसे रेशियो पढ़ रहे हैं, तो आप बता रहे हैं हाँ। कि हम ये देखते हैं कि इसका रेशियो इतना होना चाहिए, इसका इतना, तो वो जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? लाइक 1:2, 1:3 ऐसा समथिंग लाइक? There is no fixed thumb rule। वैसे कुछ में है जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें thumb rule हम ये फॉलो करते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको फिक्स एसेट ही ज्यादा चाहिए होते हैं, राइट? जिनको ये मालूम है कि हम प्रोडक्शन में, मान लो जो प्रोडक्शन में है मान लीजिए, उनके फिक्स एसेट्स ज्यादा होने जरूरी है, तभी तो मशीनरी लगाएंगे, तभी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। या ज्यादा लिक्विडिटी या ज्यादा कैश रखेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उनको, है ना? तो कैश मॉडल्स लिक्विडिटी गेन करने के लिए लगाना पड़ेगा। हाँ, लिक्विडिटी गेन करने के लिए, बट हमें ये भी ध्यान रखना होता है, से मान लो अचानक मुझे कोई लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ गई, तो वो कहां से लाओगे? एसेट थोड़े ना सेल करोगे इमीडिएटली, फिक्स एसेट को तो सेल करना पड़ जाएगा आपको, यस, राइट? से आपने घर में कुछ सामान रखा है, अब घर में सामान रखा है तो आपने सारा सामान पे पैसा थोड़ा ना लगा दोगे, कुछ खाने पीने के लिए भी तो छोड़ोगे। बट यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को खाने पीने के लिए कितना छोड़ना है, राइट? ऑलराइट,
या सेविंग में कितना डालना है, यू हैव टू डिसाइड. सो कंपनी आल्सो डिसाइड दिस थिंग कि हाउ मच आई हैव टू पुट इट इन द फिक्स्ड एसेट्स. जो मेरे घर में एसेट्स हैं मैं उन पे कितना लगाऊंगा और खाने पीने के लिए कितना छोड़ूंगा. से 10% अमाउंट आई विल लीव फॉर माय रेकरिंग एक्सपेंसेस, रिमेनिंग मैं बाकियों पे लगा लेता हूँ, है ना. से जैसे इफ यू गो फॉर टेकिंग अ लोन, सो बैंक विल से व्हाट कि up to 60% of your income we can provide you, the up to that you can pay off your EMI, after that we won't allow. उसके accordingly आपका capital decide कर देता है कि this much of the loan amount you can take. That means what they want, that 40% should be there, the liquidity that should be there for your daily base expenses. आपके remaining expenses जो हैं वो 40% होने चाहिए. Alright, so it's important when the company check this thing, they always try to find out how much we are going to invest in the fixed asset in comparison of the long term funds they are having. All right, so generally it is 0.5:1, 50% के ऊपर चलते हैं लोग, but बहुत सारे कंपनीज जो हैं 1:1 पे भी चले जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. 0.8:1 भी चले जाती हैं बहुत सारी, but we always see what is my capital gearing ratio. If it is if the ratio is say 1:1, that means it's a high geared ratio. They believe more in the keeping the fixed assets. और generally ये production sector रखता है ऐसे. सर्विस सेक्टर है, उसको फिक्स एसेट रख के क्या करना है, उसको तो सर्विस देनी है और पैसे आने हैं उसके. Why he will keep more of fixed assets? वो फिक्स एसेट्स में अपना ब्लॉक नहीं करेगा मनी, राइट. तो ब्लॉकेज ऑफ मनी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ब्लॉकेज आप कितनी कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिक्स एसेट का मतलब है भी यू आर ब्लॉकिंग योर मनी, राइट. नाउ द one question arises of the proprietary ratio. Proprietary ratio means the owner's ratio. मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग भी हमारी जो वर्थ बन रही है, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, राइट. सो मेरी जितनी भी वर्थ है उसके अगेंस्ट टोटल एसेट्स कितने क्रिएटेड हैं, वी ऑलवेज चेक दैट, राइट. इज दैट फाइन? So thereby we check the net worth is to total assets. Again, this we try to maintain at 1:1. अगर 1:1/2 भी चल रही हो तो they feel okay. अगर उससे लो जानी शुरू हो जाए तो then they believe that कि we are losing the liquidity, we are losing the what we call it. इसका मतलब हम bankruptcy की तरफ बढ़ रहे हैं. If net worth वो कैसे सर, टोटल एसेट्स भी उसी का है, नेटवर्थ भी उसी का है सर, तो बैंकरप्सी की तरफ क्यों कैसे होगा? है. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. सी नेटवर्थ कहां से कैलकुलेट होगी सर? नेटवर्थ कहां से कैलकुलेट होगी? कैपिटल ही तो देखेंगे ना. नेटवर्थ में सबसे बड़ी चीज क्या आएगी? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, एसेट ही देखेंगे, राइट. वो लायबिलिटी साइड हो गई. इसका मतलब लायबिलिटी साइड मेरी ज्यादा बढ़ रही है और टोटल एसेट साइड कम हो रही है, तो नेचुरल सी बात है आप बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं. बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, शेयर कैपिटल आपके लिए क्या है? नेटवर्थ बेसिकली क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है एक तरह से. आपका कैपिटल प्लस नेटवर्थ लायबिलिटी है सर, सारा उसका नेटवर्थ लायबिलिटी में आएगा सर. कंपनी के लिए लायबिलिटी है ना बेटा वो. हाँ ये सर, कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है. तो कंपनी की वर्थ डायरेक्शन से देखेंगे ना हम तो हमेशा कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी खड़ी है और एसेट कितने खड़े हैं. गेटिंग माय पॉइंट? कल मेरा जो ये जो पैसा लगा हुआ है, एक तो वो है, एक है उस पैसे से आपने एसेट कितने खरीदे हुए हैं. अगर एसेट कम है, मान लो आपने मेरे से पैसे ले रखे हैं 10,000 और आपके पास, कंपनी के पास एसेट्स बचे हैं सिर्फ 5,000 के, तो नेचुरली आपकी सिचुएशन खराब होने वाली है ना. हाँ सर. कल अगर आपने पैसे वापस मांग लिए, सो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी. आपको इसका सिंपल एक पॉइंट देता हूं. हैव यू हर्ड अबाउट द केस ऑफ लेमन्स ब्रदर? यस सर. लेमन्स ब्रदर में क्या हुआ? एनीबॉडी? अमेरिकन जब दो बड़े बिग जायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डूबे तो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? नहीं सुना है सर जी.
नहीं सुना, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज, ये तो बहुत बड़ा केस हुआ है मतलब वर्ल्ड ओवर। सो द थिंग इज दे वर सेइंग दिस थिंग कि हम एक काम करते हैं, हम सब लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट? वी विल प्रोवाइड अ लोन टू द पीपल। एट व्हाट बेसिस? द बेसिस विल बी से आपको हम अलाउ कर रहे हैं होम लोन ले लीजिए आप, राइट? टुडे द होम लोन प्राइस इज से 50 लाख रुपीस, सो वी विल गिव यू 50 लाख रुपीस लोन, ऑलराइट? 50 लाख का घर है, आपको 50 लाख का ही लोन दे दिया, राइट? And you are expecting that this property will go up. Everybody thinks that, right? और आपने उनको 50 लाख का लोन दे दिया और you said कि जब the time it will become 1 CR, 1 करोड़ का हो जाएगा, then you sell off your house, pay off our liability, 50,000 आप अपनी पे ऑफ कर दीजिए और 50 लाख का जो प्रॉफिट हो जाए आपको वो अपने पास रख लीजिए। वेरी सिंपल थिंग। Yes. Everybody thought this thing be yes, this is possible, yes, we will do like this. Bank also thought this thing, but what happened? मार्केट कभी इस तरह से चलती नहीं है। बट सर उसको फायदा क्या हुआ? उसने 50 का दिया और उसको 85 ही मिला तो 60 ले लीजिए। अच्छा ठीक है। उसको तो कैपिटल से मतलब है ना, उसको इंटरेस्ट प्लस मान लो 60 मिल जाएगा उसको, तब भी दूसरे को 40 मिल रहा है। यस। बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? देयर विल बी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यही तो है ना। यस। बट ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ? 10 साल बीत गए। अब बैंक है ना, बैंक को तो पैसे वापस ही हैं ना। बैंक आस्क फॉर दी मनी, नाउ यू वेंट फॉर सेलिंग द एसेट। आप एसेट मार्केट में सेल करने गए, देयर इज नो बायर एट ऑल, बिकॉज सभी ऐसे खरीद के बैठे हुए थे। देयर इज नो बायर एट ऑल, सो व्हाट विल हैपन? योर वर्थ ऑफ एसेट इज से नाउ 25 lakh only, from where you will pay off? आपका लोन तो अभी उतना ही खड़ा है ना 50 लाख का, वो भी 60 हो चुका है आपके हिसाब से। So from where you will pay off? So the worth of asset you need to check all the time. That's why they lost whole business, है ना। रातों रात दिवालिये हो गए थे लेमन ब्रदर्स का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन अराइज ये होता है कि how much is your worth and how much against it the assets are in the company. You keep on watching, उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, राइट? तो टोटल एसेट्स कितने चल रहे हैं, यू कीप ऑन वाचिंग। बट हम मैंने पहले बताया, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वी तब हम ये ध्यान देते हैं जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वी ऑलवेज सी कि व्हाट आर माय नेटवर्थ एंड व्हाट आर माय टोटल एसेट्स, इसमें रेशियो कितनी चलती जा रही है। 1:1 इज द गुड रेशियो। अगर उससे डाउन जा रही है, वी नीड टू चेक व्हाई द वैल्यूज ऑफ एसेट्स इज रिड्यूसिंग, राइट? नहीं तो इक्वेट नहीं हो पाएगा। ओके, 1 इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। This we calculate, that means profit before interest। अभी हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सक्लूड नहीं किया है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं किया है और टैक्स एक्सक्लूड नहीं किया है, इज टू इंटरेस्ट। दैट मीन्स द प्रॉफिट बिफोर पेइंग ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। P&L अकाउंट में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें से अभी हमने लेफ्ट साइड पे 2-3 एंट्रीज नहीं डाली हैं। 1 इज इंटरेस्ट नहीं डाला है अभी, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं किया है और टैक्स एक्सक्लूड नहीं किया है फ्रॉम द इनकम। उस इनकम को कंपेयर कर दें विद द इंटरेस्ट पार्ट। वी ऑलवेज चेक कि मैं इंटरेस्ट कितना पे ऑफ करने की सिचुएशन में मेरे पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट वी कैलकुलेट बिफोर द डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब बिफोर डेप्रिसिएशन का क्यों ले रहे हैं हम? इंटरेस्ट तो चलो लेना ही है, जो चीज मेरे को पे ऑफ करनी है उसको तो एक्सक्लूड करके ही चलेंगे। डेप्रिसिएशन क्यों एक्सक्लूड करना, क्यों नहीं एक्सक्लूड करना? मैंने बताया था आपको, इट्स नॉट ए कैश एक्सपेंस, राइट? देन टैक्स तो नेचुरली कम हो जाएगा जब इंटरेस्ट जाएगा या डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो टैक्स तो हमेशा इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद ही लगना चाहिए। दैट्स वाई हम प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स लेते हैं यहाँ पर, ऑलराइट?
इज दैट फाइन बेटे? यहाँ समझ में आ रही कुछ बात? यस सर, यस सर। सी मेरे पास P&L अकाउंट बनाया मैंने, राइट? P&L अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास। नेट प्रॉफिट आने के बाद मेरे को ये चेक करना है कि मैं इंटरेस्ट जो अमाउंट है, इतना लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है हमने, हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चेक कर रहा है, राइट? वो चेक करने के लिए वो कह रहा है कौन से वाला प्रॉफिट लेना इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट में 3 चीजें ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट को तो कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो पहले पे बैक करना है, पहले ही ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। फिर डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ेगी। मैंने पहले बताया कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैश आइटम नहीं है, इसलिए उसको ऐड बैक कर लेंगे। फिर टैक्स भी ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि अभी टैक्स हमारा रियल सेंस में डिसाइड हुआ ही नहीं है। द रीजन बीइंग इंटरेस्ट अभी एक्सक्लूड नहीं हुआ और डेप्रिसिएशन अभी एक्सक्लूड नहीं हुई, इसलिए टैक्स भी लगा नहीं सकेंगे, तो टैक्स हम पहले ऐड बैक कर देंगे अगर कुछ लगाया भी हुआ है। सो दैट मीन्स वी विल टेक द अमाउंट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. In comparison to that, we will check whether we are in the position to pay off the interest or not, right? This is very important thing, क्योंकि ये आपका एक recurring expense है, हर साल आना है, so you always keep on checking भी ये मेरा interest whether I am in the position to pay off my tax or not. Now the question arises the dividend coverage ratio. Dividend coverage ratio, that means whatever the dividend you will declare. मैंने पहले बताया था डिविडेंड कब डिक्लेयर करते हैं, when you have net profit after tax. That means आप सारी अपोर्शनमेंट कर चुके हैं, आप डेप्रिसिएशन भी लगा चुके हैं, इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर चुके हैं। आफ्टर दैट यू कैलकुलेट, आप टैक्स भी पे ऑफ कर चुके हैं, उसके बाद अपोर्शनमेंट्स का काम आ जाता है। अपोर्शनमेंट्स का काम है मतलब बांटने का काम आ जाता है कि कितने पैसे बांटेंगे और कितने पैसे रखेंगे, राइट? टैक्स कट चुका है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज यू अनाउंस ए डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है ना? एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा कि आपने से 12% पर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, तो एवरी ईयर यू नीड टू पे 12% ऑन द अमाउंट ऑन द प्रेफरेंस कैपिटल, राइट? तो पहले तो 12% उनका पे ऑफ करेंगे, फिर आप क्या पे ऑफ करेंगे? अगर अब मान लो भी मेरे पास हैं 20,000 लेफ्ट आउट हैं, टैक्स कटने के बाद पैसे मेरे पास कितने हैं? 20,000 बचे हैं। डेप्रिसिएशन भी उसमें से एक्सक्लूड हो चुकी है, इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर चुके हैं, सब कुछ एक्सक्लूड कर चुके हैं। सब कुछ देने के बाद मेरे पास 20,000 बचे हैं। दैट इज नोन एज रेजिडुअल अमाउंट। क्या बोलते हैं उसे? रेजिडुअल अमाउंट। ठीक है जी? सारा खर्चा वर्चा सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, सब कुछ देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल अमाउंट। ठीक है जी? बहुत जगह ये रेजिडुअल अमाउंट भी वर्ड यूज हो सकता है। उसका मतलब क्या होगा? दिस रेजिडुअल अमाउंट इज नोन एज मनी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स। मनी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स। ये पैसा जो बचा है अब वो शेयर होल्डर्स के लिए है। अब हो सकता है उसमें से 20,000 में से मैं ये डिसाइड कर लूं कि 10,000 तो भाई मैं सेव करूंगा, मतलब मैं 50% तो सेव करूंगा, मैं रिजर्व्स में रख लूंगा। अब ये जो 10,000 रिमेनिंग बचा उसको मैं शेयर होल्डर्स में बांटूंगा, तो उसको कहते हैं कंपनी डिक्लेयर क्या करती है? डिविडेंड। तो पर शेयर कितना पैसा डिक्लेयर किया, दैट इज नोन एज द amount of dividend declared per share. Is that fine? नहीं समझ में आया? सर ये डिविडेंड क्या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट से कभी भी ज्यादा होता है? बिल्कुल होगा सर। पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरी नहीं है बेटा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसका कोई डिविडेंड उससे लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। सर डिविडेंड इज लाइक फिक्स्ड अमाउंट ना, वो जो पे नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल फिक्स्ड अमाउंट, नॉट एट ऑल। इट मे बी फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट हुआ है तो दोगे, नहीं हुआ प्रॉफिट तो कहां से दोगे डिविडेंड? कंपनी को इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, डिविडेंड कहां से दोगे?
मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स रहता है ना। आप प्रेफरेंस को तो देना पड़ेगा, बट रिमेनिंग को देने की कोई जरूरत नहीं ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना नहीं देना आपकी डिसाइड करेंगे आप, यस यस। अपोर्शनमेंट है ये, राइट राइट। तो आप दें या ना दें आपकी मर्जी है, बट हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को देना पड़ेगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड में भी दो तरह के होते हैं, वन इज क्यूमुलेटिव, वन इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि इस साल नहीं अगर आप पे ऑफ कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर यू विल पे देम, तो इकट्ठा करते रहते हैं आप, ऐसा भी होता रहता है। बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, राइट। और ये प्रेफरेंस शेयर क्या है, स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं कि आईपीओ में ही मिलते हैं? ये आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कुछ शेयर्स इशू करते हैं भी, इस रेट पर हम आपको देने के लिए तैयार हैं शेयर्स। मार्केट में कहीं ट्रेड नहीं होते। अच्छा, मार्केट में ट्रेड नहीं होते। नहीं, मार्केट में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स ही ट्रेड होते हैं जी। जिनको कैपिटल लगाना होता है उनके लिए होता है ना। वो कैपिटल लगाते हैं जिनको फिक्स चाहिए अमाउंट, उसके यस यस। जिनको फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए हर साल, दे इन्वेस्ट इन दैट, ऑलराइट। देन इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यहां तक क्लियर है बेटे? अब डिविडेंड मान लो, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। मान लीजिए आपने चाहे 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, चाहे 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बट शेयर होल्डर्स एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि वी वोंट गिव एनी काइंड ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। खुद ही डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वी वोंट पे ऑफ एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, तो इट्स ओके, राइट। जरूरी नहीं है दे वांट टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी, द होल अमाउंट दे वांट टू री इन्वेस्ट इन द कंपनी, दैट्स फाइन। बहुत बार ऐसा होता है, तो कंपनीज बहुत बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती हैं। तो बट वी कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग कि व्हाट आर माय प्रॉफिट लेवल in comparison to the dividend I am declaring, right? Then is the debt service coverage ratio. Debt service, one was the interest coverage ratio. कहाँ गया ये रहा। इंटरेस्ट कवरेज कहां से कंपेयर कर रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज टू इंटरेस्ट। यहां क्या कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं? डेट सर्विस। डेट सर्विस में क्या क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट प्लस योर प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो। पीरियोडिक जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, दैट मीन्स द टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट प्लस योर प्रिंसिपल अमाउंट। सो हेयर वी विल चेक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। हेयर वी वोंट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल बी डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस पीरियोडिक लोन इंस्टॉलमेंट। वहां सिर्फ हम इंटरेस्ट कवरेज देख रहे थे, इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या मैं कंप्लीट इंस्टॉलमेंट दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। प्रॉफिट के अगेंस्ट वी ऑलवेज चेक कि इंटरेस्ट प्लस पीरियोडिक जो इंस्टॉलमेंट है मेरी, वो जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। अगर आप इसको से नेशनल लेवल पे आजकल बहुत डिस्कशन में चल रहा होता है that we are not in the position to even service our debt. हमारा डेट, नेशन का डेट बढ़ता चला जा रहा है। आजकल बहुत डिस्कशंस में बहुत लोग मुद्दा उठाते रहते हैं ये। सो व्हाट वी डू, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से, डेट सर्विस क्या होती है? डेट सर्विस का मतलब है कि दैट वी आर नॉट इवन टू पोजीशन इन द पोजीशन ऑफ पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वी आर सेइंग दैट इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं, वो चेक करना है हमें। तो वो कैसे चेक होगी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वी विल कंपेयर इट विद इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट यू आर पेइंग ऑफ। इसकी भी रेशियो चेक करते रहते हैं। इसकी रेशियो जनरली मेरा ये मानना है टाइम्स में निकल के आनी चाहिए। टाइम्स का मतलब क्या है? ये जनरली हम मान के चलते हैं 2:1 होनी चाहिए, कि हम 50% तो हमारे पास रिमेनिंग और भी अमाउंट बचती हो, अपना सारा इंटरेस्ट एंड ऑल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ करने के बाद कुछ तो शेयर होल्डर्स के पास भी पैसा बचता हो,
दैट्स व्हाई वो हम ज्यादा हायर अप्स पे लेना चाहते हैं. प्रॉफिट शुड बी हायर देन द interest and the periodic installment. Is that fine? With this, we will try to check the long-term solvency. All right? Long-term solvency we try to check. तो इसमें से सारी नहीं आएंगी, आपको कुछ तो अच्छे से याद करनी पड़ेंगे. दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद करने ही पड़ेंगे, मतलब रटने पड़ेंगे. ये तो आपको रट के ही काम चलेगा इसमें एक्चुअली आपका. ऑलराइट, इज दैट फाइन? शैल वी Yes. प्रोसीड फर्दर? बेटा यहां तक नहीं, अगर कुछ समझ में आया तो पूछ सकते हैं. सर इसका यूज क्या है जब कंपनी को हम एक्वायर करते हैं उस समय इवैल्यूएट करने के लिए? यस, तब भी कर सकते हैं आप, रूटीन बेसिस पे भी करते हैं. क्या इन्वेस्ट करने के पहले? देखिए दो चीजें हैं. वन इज आप अब इन्वेस्ट करने लगे हैं तब भी चेक करेंगे, आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तब भी चेक करते रहेंगे. देखिए जो शेयर होल्डर है वो तो हर टाइम चेक करता रहेगा ना कि कहीं मेरी कंपनी दिवालिया तो नहीं होने वाली. नॉट ओनली दिस, से टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी देखता रहेगा, अदर स्टेक होल्डर्स भी देखते रहेंगे, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं वो भी चेक करते रहेंगे. आपको सर लग रहा है, बट बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज भी चेक करते रहते हैं कि यार ये आजकल हमारी सैलरी तो दे नहीं पा रहे हैं, ये हालत हो गई है कि ये इंटरेस्ट भी पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, अपना कर्जे का जो इन्होंने लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी पार्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, या उसकी इंस्टॉलमेंट भी दे नहीं पा रहे हैं. तो व्हाट यू से, ही इज गोइंग टू बैंकरप्ट सून. सो वी ऑलवेज चेक, कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग. तो कंपनीज जो हैं वो हमेशा चेक करती रहती हैं. तो इन रेशियोज का कुछ आइडियल रेंज भी है? आइडियल रेंज की ही मैं बात कर रहा था, बट कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है. आइडियल रेंज में साथ साथ में आपको बताता चला जा रहा था सबकी, हम किस में क्या रेशो रखते हैं. से डेट इज टू इक्विटी रेशो मैंने पहले ही बताया, वो जनरली हम 1:1 तो ओके चलती है. 1:1 तो ओके चलती है. अगर डेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, शेयर होल्डर्स जो हैं, ये मेरी आवाज कौन रिपीट कर? सर आपके दो सिस्टम पे लॉगिन है सर, शायद उससे हो रहा है. नहीं, मेरा एक ही सिस्टम में लॉगिन है. सिस्टम को फॉल्ट. सर किसी ने अनम्यूट किया होगा. किसी ने अनम्यूट किया होगा, वो मेरी आवाज आ रही होगी, अब कर दिया होगा ठीक. ऑलराइट, से ये रेशो हम चेक कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, अगर देखिए बेटे, अगर डेट की रेशो बढ़नी शुरू हो जाएगी, डेट ज्यादा बढ़ना हो जाएगा शुरू अगेंस्ट दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये फियर में आ जाएंगे इमीडिएटली, राइट. और सेकेंड चीज, अगर मेरा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, मार्केट में आपको लोन सस्ता मिलना शुरू होगा कि महंगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब आप उनको ये लगने लग जाएगा भाई इसके पास तो लोन ही लोन चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा, तो धीरे धीरे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ाना शुरू कर देगा. लाइक इन सिबिल दे सी व्हाट, कि इसने ऑलरेडी कितना लोन लिया हुआ है. अगर उसको लग रहा है ये ऑलरेडी 8% लोन पे लिया हुआ है इसने, दिस टाइम दे विल गिव यू डेफिनेटली एट 9%. द रीजन बीइंग, अब उसको पता लग रहा है कि इसकी कर्जा बढ़ चुका है इस पर्सन का. सो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि इसका डेट कितना बढ़ रहा है. सो दे मेंटेन दिस रेशियो, दे नेवर वांट कि ये, क्योंकि होगा क्या, उससे होगा क्या, उनको डर किस बात का. एक तो इनकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड चीज, डेट जो होता है वो डबल एज वेपन होता है. आप इस चीज पे भी ध्यान दीजिए. डबल एज वेपन क्यों उसको बोलते हैं, कि मेरे को तो फिक्स देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट देना है. तो अगर मान लो मैंने 1 लाख कमाया और सिर्फ 10,000 ही मेरे को इंटरेस्ट देना है, मान लो अगर 1 लाख कमाया तब भी 10,000 देना है, अगर 1 करोड़ कमाया तब भी 10,000 देना है, और चाहे 100 करोड़ कमाया तब भी 10,000 देना है. तो अच्छा भी हो सकता है ये. बट इफ यू आर सिंकिंग, अगर आप लॉसेस में जा रहे हैं, देन सबसे बड़ा खतरनाक क्या चीज होती है, डेट, राइट. सो दैट्स व्हाई दे कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग. अगर तो बहुत हाई प्रॉफिट्स चल रहे हैं, दे नेवर माइंड कि आपका डेट बढ़ रहा है. बट अगर आपका डेट बढ़ रहा है
और आप बहुत मिनिमम प्रॉफिट्स कर रहे हैं या आपके जो यू आर सफरिंग लॉसेस, देन शेयर होल्डर्स जो हैं वो वरिड हो जाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट दे कीप ऑन चेकिंग दिस रेशो कि हमारे अगेंस्ट डेट कितना चल रहा है. कहीं डेट ज्यादा बढ़ गया तो वो कंपनी को वो ना कब्जा लेंगे, राइट? दे विल टेक ओवर द होल कंपनी. इज दैट फाइन? तो इस तरह की सारी रेशियोज हम मेंटेन करते हैं, चेक करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, राइट? So this was all about the long term ratios. One is the liquidity ratio or the short term solvency ratio. अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? जो हम ऑलमोस्ट 15 डेज पे या मंथली बेस पर चेक करते हैं. लॉन्ग टर्म तो आपने साल में एक बार चेक कर ली या 2 साल में या 3 साल में चेक कर ली. बट जो लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी मींस मैंने पहले बताया एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करेंगे? मैंने पहले बताया था वी ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल किस पे हमने डिसाइड करना था? दैट द हाउ मच यू हैव अगेंस्ट द how much you assets, current assets you have against the current liabilities. So what is your proportion between the current assets and the current liability? तो लिक्विडिटी रेशियो में हम सबसे पहली जो रेशियो आती है दैट इज नोन एज करंट रेशियो. देखो करंट अभी एट प्रेजेंट अगर मेरे को इमीडिएटली पे ऑफ करनी पड़ जाए अपनी करंट लायबिलिटीज तो उसके अगेंस्ट मेरे पास करंट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं. आप भी देखते हैं ना कि एक बार भी यार अचानक मेरे से कोई पैसे मांग ले या अचानक कोई खर्चा आ जाए तो मैं कहां से दूंगा. तो आपको ध्यान रहता है कि यार इतने मैंने उस पर्सन से लेने हैं, इतने मेरे कैश में पड़े हैं, इतने मेरे बैंक में पड़े हैं. So you have a one idea, this much current assets I have, so that I can pay off my current liabilities. अचानक अगर कोई liability आ जाती है तो वो कैसे पे ऑफ करनी है, right? तो वो ये कह रहा है कि current assets against the current liabilities कितनी है मेरी पास, that we always check. So the proportion will be what? Current assets is to current liability, right? ये जनरली हम 2:1 की रेशियो में रखते हैं. किस रेशियो में रखेंगे? 2:1. इज दैट फाइन? यस. बहुत सारी कंपनीज ये कहती हैं 1:1 की रेशियो भी अच्छी होती है, बट मैक्सिमम कंपनीज इसको 2:1 रखती हैं. दैट मीन्स जितना मेरा खर्चा है उसका डबल मेरे पास पैसे होने चाहिए. इज दैट फाइन? यस सर. अभी आपकी ना आवाज कभी बहुत तेज आ रही, कभी स्लो, कभी तेज, कभी slow. I don't know, I just check. Is my screen visible? Yes, sir, it is visible. Okay. Okay. So one is the current ratio, another is the quick ratio. Quick ratio says that you have to compare between the current assets and the current liabilities, but from the current assets, what we exclude is the inventories. What we exclude is the inventories. Inventories का क्या मतलब है? स्टॉक. स्टॉक आपके पास कोई पड़ा हुआ है, मान लो गुड्स का जो भी सामान पड़ा हुआ है, हो सकता है वो इमीडिएटली आप बेच ना पाए, हो सकता है उसको बेचने में आपको 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए. सो व्हाट वी डू, दिस इज द वेरी क्विक रेशियो. क्विक रेशियो में से वी एक्सक्लूड व्हाट? द इन्वेंट्री पार्ट. दैट मींस द स्टॉक वी एक्सक्लूड. एंड इन द केस ऑफ liabilities, current liabilities, we exclude the bank overdraft. हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट अभी आपको पे ऑफ ना करना पड़े, सिर्फ इंटरेस्ट पे ऑफ करने से काम चल जाए,
तो हो सकता है आप अगले साल हर साल इसको रिन्यू भी करवाते चले जाएं. सो दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूड इट फ्रॉम द करंट लायबिलिटीज. उसके बाद जो हम रेशो चेक करते हैं दैट इज नोन एज द क्विक रेशो. दिस इज व्हाट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो. मतलब शॉर्ट टर्म में मेरा खर्चा चल पा रहा है कि नहीं पा रहा, मैं बैंकक्रप्ट तो नहीं होने वाला हूं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कीप अ वॉच ऑन दिस थिंग that what is my position in the case of liquid ratio or the quick ratio. Current ratio means the current asset is to current liability. Quick ratio means the current assets minus stock and current liabilities minus overdraft. Then we will check the ratio. अगर ये रेशियो हम मेंटेन कर रहे हैं, करंट रेशियो अगर हम मेंटेन कर रहे हैं 2:1, तो क्विक रेशियो हम जनरली मेंटेन करते हैं एट 1:1. Then absolute quick ratio, right? One is या फिर absolute liquid ratio, that is known as absolute liquid assets divided by the current liabilities. Absolute liquid assets कौन से होते हैं? That is known as say बैंक में आपके कितने पैसे पड़े हैं, कैश कितना पड़ा है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर हम उसको बोल देते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं जो कि कैश के बराबर ही आप मानते हो कि हाँ यार इसको जैसे ही हम जाएंगे मार्केट में चेंज करेंगे और पैसे आ जाएंगे हमारे पास. सो दैट इज नोन एज द कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. सो दिस रेशियो शुड बी बिटवीन द 0.5:1. 0.5:1. ये हो जाएगी 2:1. सेकेंड आपकी हो जाएगी 1:1 एंड दिस कैन बी 0.5:1, राइट? So you always check what are your absolute liquid assets, what is your proportion with the current liabilities, right? Is that fine? सर एक क्विक रेशियो में जो आप बता रहे हैं कि रेशियो इट शुड बी मेंटेन 1:1. मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो बराबर होना चाहिए, राइट? बराबर होना चाहिए, जी जी बिल्कुल. मतलब एक बार इसको ना कुछ और कुछ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे सर ये वाले पॉइंट को. 1:1 इसमें ऐसा कि ओवरऑल देखा जाए तो 0 रहेगा. जैसे देखिए आई डोंट नो व्हाट योर फाइनेंशियल पोजीशन इज. से जिन लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी टाइट रहती है ना, तो कंपनी इंडिविजुअल वे पे समझने की कोशिश कर रहा है सो दैट यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. सो व्हाट आई डू, तो मेरा एक से मान लो रेंट भी जाना है, मैंने अपने जो कुक रखा हुआ है या वर्कर कोई रखा हुआ है उसको पेमेंट भी जानी है, और उसके बाद मुझे लग रहा है मेरी EMI भी जानी है. समथिंग इज लाइक दैट इज देयर, राइट? तो मेरे को ये लगता है कि यार से मान लो वो 50,000 जाना है, सम टोटल इज 50,000 एंड वो हर मंथ जाना है, एवरी मंथ. तो करंट तो तभी हुआ, लॉन्ग टर्म तो हुआ नहीं. लॉन्ग टर्म खर्चा तो है नहीं है, वो शॉर्ट टर्म खर्चा है मेरा. तो शॉर्ट टर्म खर्चे को मैं शॉर्ट टर्म इनकम से ही चेक करता हूँ भी इस महीने मेरे पास कितने पैसे आने हैं. ऐसे मेरे को लग रहा है मेरे पास पूरे 50,000 आ जाएंगे यार, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती. अगर मेरे पास 40,000 आ रहे हो और 50,000 मेरे को पे ऑफ करने हो तो नेचुरली मेरे माइंड पे एक प्रेशर आना शुरू हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट. मुझे ये लग रहा है कि यार हाँ एक काम हो सकता है कि से 40,000 तो मेरी सैलरी आनी है और 10,000 मेरे वो दोस्त से उधार आने हैं, तो 50,000 का मेरा काम चल जाएगा, राइट? दिस मच. आप सिर्फ इतना ही पार्ट को सोच रहे हैं, आप पूरा लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं कि मुझे घर भी बनाना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है. यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, राइट? सो इन दिस रेशियो वी ऑलवेज चेक कि मेरे पास इस टाइम पैसे कितने पड़े हुए हैं और कितने मेरे को खर्चे देने हैं एट प्रेजेंट ओनली, इन मंथ ओनली. इसी मंथ में कितने पैसे देने हैं मान लीजिए, उसके अगेंस्ट मेरे पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं. आई ऑलवेज चेक. ये बात क्लियर हो रही है अब आपको? यस सर. क्विक का मतलब कि विद इन अ मंथ व्हाट वुड बी द माय Within a week. व्हाट आई हैव विद इन अ वीक और अ मंथ. हाँ, जो भी शॉर्ट टर्म का मतलब है विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, इन अ शॉर्ट टर्म. यस. ठीक तो है. जितने भी मेरे पास करंट एसेट्स होंगे, करंट लायबिलिटीज, बट हाँ क्विक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम स्टॉक नहीं लेते कि जितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है. मान लो मेरी शॉप जो है वो है से रीबॉक का मेरा शोरूम है मान लीजिए, और शूज मेरे को सेल ऑफ करने हैं. एक ही दिन में तो सारे बिक नहीं जाएंगे, स्टॉक तो पड़ा रहेगा, और स्टॉक भी बहुत सारा पड़ा रहेगा, क्योंकि एक ही डिजाइन की चीज शायद 8 नंबर में भी हो, 7 नंबर में भी हो, 10 में भी हो, और 10 नंबर बिक ही नहीं रहा. मान लीजिए पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है,
हो सकता है 6 महीने तक एक बेच पाओ, डिजाइन एक है, सेम सब कुछ एक है, बट वो उसका नंबर आपके पास नहीं बिक पा रहे हो। सो स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई वी डोंट इंक्लूड इट इन द क्विक। क्विक का क्या मतलब है? इमीडिएटली जैसे ही सेल ऑफ हो जाएगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, आई विल बी एबल टू पे ऑफ माई करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी करंट में वो कह रहा है कि उसमें आप बैंक को भी, बैंक के ओवरड्राफ्ट को मत लीजिए, बट अगर बैंक अदर इंटरेस्ट जा रहे हैं या कुछ और जा रहा है, दैट इज द करंट लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे ऑफ, वो आपको पे ऑफ करनी पड़ सकती है इमीडिएटली। इज दैट फाइन? Okay. Now, one is the bank finance to working capital gap ratio. अब वर्किंग कैपिटल गैप रेशियो क्या था? मैंने पहले बताया था, वर्किंग कैपिटल कितना है आपके पास। वर्किंग कैपिटल कैसे चेक करेंगे? ये तो मैं करवा चुका हूं। हाउ यू विल कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल गैप? वर्किंग कैपिटल विल बी व्हाट? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एनी एक्सेस अमाउंट ओवर द करंट लायबिलिटीज ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की कोई भी वैल्यू जो है करंट लायबिलिटी से बढ़कर है, वो अमाउंट आपने नीचे ले ली। और शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स आप चेक करेंगे हमेशा कि वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितना बच रहा है अगेंस्ट दी शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स। आप शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स भी लेते रहते हैं, आपने छोटे मोटे पैसे ले लिए बैंक से कि जी आज मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए पैसे ले लिए आपने। तो शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स चलती रहती हैं जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी। सो दे ऑलवेज चेक कि वेदर दे विल बी एबल टू पे ऑफ दैट और नॉट बाय द वे ऑफ द एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना भी आपके पास एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल बचा है ऑन दैट वेरी बेसिस। बेटा यहां तक ठीक है? दीज आर ऑल अबाउट द क्विक रेशियोज। पहले आपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर ली, अब आपने क्या चेक कर लिया? आपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और द क्विक पॉइंट कि आपका अभी एग्जैक्ट 1 वीक या 1 मंथ तक आपकी, या 1 ईयर तक इवन आपकी पोजीशन क्या बन रही है। लॉन्ग टर्म हम जनरली चेक करते हैं इन दी फॉर दी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा में क्या पोजीशन बन रही है। और जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की 6 मंथ्स टू 1 मंथ की भी हम चेक करते हैं, तब भी उसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में ही कंसिडर करते हैं। वन इज द एक्टिविटी और द टर्नओवर रेशियो। अब हम चेक कर रहे हैं कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, उसकी टर्नओवर क्या है। उसकी टर्नओवर मींस वो कितनी जल्दी या तो रिकवर हो जाती है चीज, या कितनी जल्दी मैं सेल ऑफ कर देता हूं कोई चीज, या उसकी कितनी जल्दी पैसे आ जाते हैं मेरे, या कितने पैसे आ जाते हैं मेरे, राइट। दैट वी चेक इन द केस ऑफ टर्नओवर रेशियो, राइट। कितने पैसे किस चीज के अगेंस्ट आ रहे हैं मेरे, दैट वी चेक, राइट। या कितनी चीज किसके अगेंस्ट आ रही है, दैट वी चेक, दैट इज नोन एज द टर्नओवर रेशियो, राइट। से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहती है? सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। सेल्स कितनी हो रही है मेरी, सेल डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। मेरे पास एवरेजली इन्वेंट्री कितनी पड़ी रहती है, उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी हो जाती है, इस प्रोपोर्शन को मैं ऑल द टाइम चेक करता हूं। दैट इज नोन एज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, राइट। कैसे चेक करेंगे? इसका क्या बेनिफिट निकलेगा? एनीबडी? नहीं समझ में नहीं आया? सर अगर हमारी सेल्स ज्यादा होगी तो हमारे पास इट विल बी गुड। Okay, It will be Profit? good for us because we will have profit. we are in profit. Okay, what is this thing? हम इसको लेमैन लैंग्वेज में समझिए। मैं आपको इसलिए थोड़ा
नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट, सो दैट टुमारो इफ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन इट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। ऑल्दो यू वॉन्ट गेट अ प्रैक्टिकल, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है छोटा मोटा प्रैक्टिकल आ भी जाए, but most probably there is a less chance that you will get any practical on it. But yes, theoretically you should have a clear understanding of it. अब मेरा ये मानना है, मान लीजिए you have opened a shop, आप चाहे किराने की शॉप ही आप खोल के बैठे, तो आप क्या चेक करते हैं, इन्वेंट्री कितनी रह रही है। मान लो 1 लाख की इन्वेंट्री पड़ी रहती है ऑन एन एवरेज, आपकी सामान रोजाना के बेस पे आ रहा है और जा रहा है, बट एवरेजली आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख का माल तो पड़ा रहता है। अब आप 1 लाख के माल के ऊपर ये भी तो देखेंगे ना कि कितने की सेल एक दिन में हो जाती है या 1 महीने में हो जाती है, ये भी तो देखेंगे ना कि 1 लाख का माल रखा है तो 10,000 की सेल हो जाती है, 2 लाख का माल रखा है तो 20,000 की सेल हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक तो किसके ऊपर कंपेयर करेंगे कि मेरे पास माल कितना पड़ा रहता है, यही चेक करेंगे ना कि मेरी सेल कितनी होती है और माल कितना पड़ा रहता है। अगर मान लो 1 महीने में मेरा 50,000 का माल बिक जाता है और 1 लाख का माल रखा हुआ है, तो एवरेजली मैं ठीक ही हूँ, डबल ही माल रखा हुआ है मैंने। और अगर आपकी सिर्फ सेल हो रही है से मान लो 1,000 रुपए की और आपने माल रखा हुआ है 1 लाख रुपए का, कहीं ना कहीं आप लॉसेस में जाने वाले हैं, क्योंकि एवरेजली स्टॉक आपने ज्यादा रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो वो 1,000 कर करके बेचेंगे तो कितनी देर में बेच पाएंगे पूरा माल? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर वही 10,000 की सेल हो रही होगी तो दैट मींस 10 महीने में बिक जाएगा। यस। सो टर्नओवर क्या निकली? टर्नओवर क्या निकली? 1:10 की रेशो निकलाई। हाँ जी। दैट मींस 10% मेरा माल बिक जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझो तो 10% बिक जाता है, तो इसका मतलब मेरे को रिफर्बिश भी जो करना है वो 10% करना है। तो सो मेनी इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस रेशियो, राइट? सो रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what we will do, so sales are my say this much of the sales are there and the average inventory. Average inventory निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. जो नॉर्मल एवरेज लेते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना है, उन दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया. दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री. So sales divided by the average inventory will give you the inventory turnover ratio. Okay. बेटा यहां तक तो समझ में आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब आ रहा है मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो. डेटर टर्नओवर रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब ये क्या बताता है? कहता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स. क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स. अब वो ये कह रहा है एवरेज डेटर, एवरेज जब भी ले रहे हैं मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज जहां भी ले रहे हैं वर्ड. सो कह रहा है क्रेडिट सेल्स क्या है, मतलब उधार की जितनी भी सेल्स कर रहा हूं वो, राइट? बेटे अभी सिर्फ इतने पार्ट को देखेंगे, दिस डेटर टर्नओवर रेशियो. ये प्लीज माइक बंद कर लेंगे, किसी एक ने माइक ऑन किया होगा. सो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कि क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज डेटर्स. क्रेडिट सेल्स क्या है कि मैं उधार पर सेल्स कितनी कर रहा हूं, उसको किससे डिवाइड करेंगे? एवरेजली मेरे देनदार कितने रह जाते हैं. डेटर्स कौन है? मेरे जिन्होंने पैसा मेरा देना है, जिन्होंने मेरे से क्रेडिट में सेल जिनको मैंने कर रखी है, जिनको मैंने उधार में सामान दे रखा है. तो इस रेशियो को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, राइट? क्रेडिट सेल्स हमें ये देखना पड़ता है कि अब हमें क्रेडिट सेल्स कम करनी पड़ेंगी. अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्रेडिट सेल्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू द डेटर्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वो हमें ध्यान देना पड़ता है. इस रेशियो को निकालने के बाद एक बेनिफिट निकल के आता है, वो मैं बता रहा हूं. क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज डेटर्स. एक तो ये रेशियो निकाल ली मैंने.
कि सेल्स कितनी हो रही हैं और मेरे एवरेज डेटर्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, दैट वी कीप ऑन चेकिंग। सेकेंड चीज जो निकल के आती है, दैट इज द एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365, दैट इज नोन एज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेजली आपके पास कितनी जल्दी पैसा आ जाता है, कितनी देर में पैसा आ जाता है, वो आप टाइम निकाल लेते हैं, कितने डेज में आ जाता है। टोटली इनवर्स ऑफ दिस रेशियो ले लेते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो का इनवर्स ले लेते हैं। इसका मतलब क्या निकल गया है कि मैंने उधार मान लो 1 लाख का उधार दिया था, क्रेडिट सेल्स की थी 1 लाख की, और एवरेज मेरे डेटर निकल के आ रहे हैं, कुछ भी इतने लोगों के पास मेरा उधार पड़ा रहता है। जब इसकी इनवर्स में मैंने प्रोपोर्शन ले ली और इनटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, मेरे पास ये निकला है कितने दिनों में मेरा पैसा रिकवर हो जाता है, कितने दिनों में मेरे पैसे की कलेक्शन वापस हो जाती है। इज दैट फाइन? बेटा ये समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. राइट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, आपके डेटर्स एवरेजली कितने रह रहे हैं, इसकी आपने प्रोपोर्शन चेक कर ली, और आप ये हमेशा चेक करना चाहते हैं कि उधार में जिन लोगों को मैं सामान दे रहा हूं वो कितनी जल्दी उनसे कलेक्शन आ जाती है मेरी। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज, तो आपके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो जाएंगे, कितने दिनों में आपका जो क्रेडिट सेल की हुई है वो रिकवर हो जाती है, कितनी देर में पैसे आपके वापस आ जाते हैं। इफ इट इज एक्सीडिंग से मान लो 3, मान लीजिए वो कुछ लोग कहते हैं कि 1 महीने में रिकवर हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं 3 मंथ्स में हो जाएं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं 1 साल भी तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉट एवरीवन हैव देयर ओन सिस्टम, है ना, एवरीवन हैव देयर ओन सिस्टम कि कब उनके पैसे रिकवर हो जाएं, राइट। से you are in the business of photography, है ना, फोटोग्राफी, एंड यू गो फॉर दिस थिंग, अ मैरिज को आप कवर करने चले गए, और मैरिज की आपने फोटोग्राफ बना दी, वीडियो रील्स भी बना दी, सब कुछ बना दिया, एंड बिल इज अराउंड से 1 लाख रुपीज। नेचुरल सी बात है, शादी हो गई, शादी में सारा खर्चा हो गया, अब लड़के वालों के पास पैसे नहीं है पे ऑफ करने के लिए। अब वो जो शादी की रील बनाई है, वीडियो बनाई है, जो भी बनाया है, बनाई तो उधार में आपने, अब वो रिकवर नहीं हो पा रही, किसी और को बेच नहीं सकते। ये तो है नहीं कि मिस्टर राहुल की बनाई है और आप उदय को बेच देंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता ना, तो वो तो उन्हीं के लिए है। सो योर मनी विल बी ब्लॉक्ड, यू हैव टू चेक वो कितनी देर में आ जाएंगे, कितनी देर में पैसे जो मेरे उधार में गए हुए हैं वो कितनी देर में आ जाएंगे, यू नीड टू चेक दैट। सेम वाइज बिजनेसेस में ये चेक करना पड़ता है कि मेरा ब्लॉक मनी तो नहीं हो रहा है कहीं। सो यू ऑलवेज चेक कि व्हाट आर माय डेटर लेवल्स, व्हाट आर माय क्रेडिट सेल्स लेवल, एंड विद इन व्हाट पीरियड यू विल बी एबल टू रिकवर इट। इज दैट फाइन? बड़ा समझ में आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस रेशियो की? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पैसा कितनी देर में रिकवर हो रहा है। अब वो तो अब साल तक नहीं होगा, वो साहब के पास साल तक पैसे नहीं आएंगे, तब तक नहीं रिकवर होगा। इट्स इंपॉर्टेंट, और सिर्फ उन्हीं से रिकवर होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम गुड्स में डील कर रहे हैं, मान लो गुड्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स में, ऐसे क्लोथिंग है, क्लोथिंग में आप डील कर रहे हैं, तो अगर आपके पैसे टाइमली रिकवर नहीं हुए, सो यू वोंट बी एबल टू रिप्लेस। से अभी समर सीजन चल रहा है, समर सीजन के पैसे जाकर आपको कम से कम सर्दी के सीजन से पहले आ जाने चाहिए, जस्ट एक इमेजिन है। तो अगर वो नहीं आए तो यू वोंट बी एबल टू रिप्लेस द थिंग्स, आप अपने गुड्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। गर्मी के सीजन को जाते ही आप विंटर के सीजन का माल आपको लगाना है, आप तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आपके समर सेल के पैसे रिकवर नहीं हो चुके होंगे। सो यू ऑलवेज चेक वो कब तक पैसे आ जाएंगे मेरे, तो एवरेजली आप चेक करते हैं कितनी देर में आ जाते हैं। सो दिस एवरेज कलेक्शन पीरियड टेल यू अबाउट विद इन व्हाट पीरियड यू विल get that money back. So this ratio is very important. So first of all you will check the debtor turnover ratio कि मेरा debtors और turnover कितनी आ रही है against उसके sales कितनी हो रही है मेरी, और now you check कि what is your average collection period.
देन द एसेट टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, सर यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब जब भी नंबर ऑफ डेज सो of- दैट वी गेट द yes. नंबर ऑफ डेज। सर वो नंबर ऑफ डेज तो 365 है लाइक 1 ईयर, तो 1 ईयर से ज्यादा मतलब अगर कोई ऐसा पे कर रहा है, कोई ऐसा कर्ज है जो 1 साल से ज्यादा नहीं, लगा हुआ है, हम 1 साल में, मैंने पहले बताया ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है हमारी, तो शॉर्ट टर्म में ही चेक करेंगे इसको। शॉर्ट टर्म मींस अप टू 1 ईयर। ठीक है, thank you. ठीक है, हाँ हो सकता है। देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत बार आपका साल 2 साल तक पैसा आता है, बट हर बिजनेसमैन की कोशिश ये रहती है कि वो उसी साल में पैसे रिकवर कर ले, राइट। हर बिजनेसमैन की कोशिश तो यही रहती है, और वो हमेशा चेक करता रहता है मेरा उधार का पैसा कितनी देर में वापस आ जाता है। वो हमेशा चेक करेगा, करना ही पड़ेगा उसे। नहीं चेक करेगा तो फिर वो फंस जाएगा। फिर वो अपने नेक्स्ट साइकिल कैसे चलाना है वो उसको समझ में नहीं आएगा। दिस इज द साइकिल बेसिकली। आपने उधार में माल दिया और उधार का पैसा कितनी देर में आ गया, ये एक साइकिल है, और ये जितना छोटा साइकिल होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। बट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके यहाँ चलता है, उनके थोड़ा उनको दे अंडरस्टैंड कि हमारा माल जल्दी बिकेगा नहीं और जल्दी पैसा आएगा नहीं, दे अंडरस्टैंड। बट सर्विस सेक्टर में ये साइकिल शॉर्टेस्ट होता है। मान लो 5 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन ऐसे होता है। से सर्विस सेक्टर, खाना खिला रहे हैं आप, मान लो होटल इंडस्ट्री है, होटल में तो इमीडिएटली आपका पैसा आएगा। आपने ये देखा होगा सुखदेव का ढाबा, Yes, sir. 50 लाख की 1 दिन की रिटर्न है। उधार में तो कुछ देता ही नहीं वो, Yes. कैश है, टोल सर, टैक्स है, item कैश है। आइटम के टाइप पे भी डिपेंड करता है क्या? यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। आप होटल में है, होटल इंडस्ट्री में है, तो नेचुरली इमीडिएटली पैसे आएंगे आपके। उधार का मतलब ही नहीं है वहां। व्हाट माय पॉइंट? आपका रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसमें उधार का मतलब ही नहीं है। हाँ, यस, साथ वाले ऑफिसेज में हो सकता है एक आधे में आपने अलाउ कर रखा हो कि हाँ जी 1 महीने का आप खाना खाइए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। ज्यादा इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? Got it? जी। तो एवरी अब मैन्युफैक्चरिंग में है तो इट विल टेक टाइम नेचुरली। आपने कोई कैपिटल, आप हैं ही कैपिटल मशीनरी बनाने में लगे हुए। कैपिटल मशीनरी का क्या मतलब है? मान लीजिए आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाते हैं, और तो नेचुरली उसमें पैसे जल्दी नहीं आएंगे आपके, उसमें ब्लॉकेज ऑफ मनी होगी। उतनी ही फिर ब्लॉकेज ऑफ मनी के हिसाब से आप मानकर भी चलते हैं कि मेरे को कितना पैसा मेंटेन रखना है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मान लीजिए आप कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है? आप मशीनरी बनाते हैं कंपनीज के लिए, तो मशीनरी मान लो अराउंड ऑफ से 10 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, आप बढ़िया एडवांस 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेंगे। मीनिंग आपने मशीनरी इंस्टॉल कर दी और आपको 5 जगह से ऑर्डर आ रखा है, 10-10 करोड़ की हर जगह लगाई है, मशीनरी लगानी है, तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? 50 करोड़ की। यस, तो सबसे एडवांस भी ले लिया तब भी 10 करोड़ ही तो आया ना आपके पास। अब एवरीबॉडी इज सेइंग कि मैं थोड़ा सा काम चला लूं देन आई विल पे ऑफ। हर कोई ये कह रहा है मशीनरी लगाने वाला। तो मान लो वो 5 साल में वापस करेगा तो आपको क्या लगेगा? अब आपको कितने पैसे चाहिए 5 साल तक? कितने पैसे चाहिए होंगे आप अंदाजा लगाइए। एवरी ईयर यू रिक्वायर व्हाट? 50 करोड़। हर साल मान लो 5 मशीनरी लगाते हैं, 50 करोड़ 1 साल की हो गई, 250 करोड़ चाहिए आपको। इसका मतलब पैसे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस, क्योंकि पैसे तो वहां से आएंगे नहीं। पैसे हर साल कितने आएंगे वहां से? 10 करोड़ सिर्फ। 40 करोड़ इसका मतलब हर साल चाहिए आपको एडिशनल। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कीप ऑन चेकिंग भी जिनको आप उधार दे रहे हैं उससे पैसा कितना आ रहा है, उसको आप रिकवरी में लगा लेते हैं। मतलब इतना रिकवर होगा, क्योंकि उसी को फिर री इन्वेस्ट तो करेंगे ना आप। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then asset turnover ratio, is that fine beta? Should we proceed further? रिप्लाई नहीं आया। आज मुझे लग रहा है समझ कम आ रहा है आप लोगों को। Yes, sir. रेशियो कुछ ज्यादा ही है सर, इसलिए नहीं बहुत फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो थोड़ा गया। हैवी हो रहा है। Yes, yes. Yes, sir, कोई कवर से नहीं है सर ना, सारे इसीलिए ना सब लोग- सिमिलर लग रहे हैं, सारे रेशियो सिमिलर लग रहे हैं सर, इसलिए रट्टा मारना पड़ेगा।
हाँ रट्टा वही मारना तो। पड़ता है इसमें। अरे देखिए कोई इसमें तो रट्टा टेक्निकल मारना बैकग्राउंड से है अरे कोई कॉमर्स पढ़ाई नहीं है ना, मेन बात वो है। सर, टेक्निकल बैकग्राउंड से ये तो बस देख देख के हम कुछ जैसे गेस कर रहे हैं क्या होगा। अच्छा, ओके ओके। नहीं, सी मैं आपको अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, द रीजन बीइंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट। मे बी आप कैलकुलेट ना भी करें, बट यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। से at your level, say if you are at your level, I say, so say you are in the IT firm, you have certain clients, आपके कुछ clients होंगे, they will ask you for making up a software, आपने उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, now you sold the software to them, and सॉफ्टवेयर आपने कोई बहुत सस्ता तो बनाया नहीं होगा, सॉफ्टवेयर will be around of say आपका 50 लाख का है, 10 लाख का है मान लीजिए, तो 10 लाख आपने तो लगा दिए, आपने अपने वर्कर्स, साथ में जो वर्कर्स थे उनको भी पे ऑफ कर दिया, सब कुछ पे ऑफ कर दिया, बट जिसको सेल किया है वो प्रोजेक्ट या जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो अगर रिकवर ही आपका मतलब 5 साल में जाके हो रहा है, तो आपके तो बेनिफिट का नहीं हुआ ना, आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया। सो कितनी ब्लॉकेज ऑफ मनी हो रही है, दैट यू नीड टू चेक, क्योंकि उसमें से कितना पार्ट रिकवर हो रहा है, दैट यू नीड टू चेक। आप उसमें से कितना पार्ट रिकवर हो रहा है वही तो आप कैलकुलेट करेंगे, तभी तो आप अगले प्रोजेक्ट्स में लगा पाएंगे पैसा, नहीं तो एक ही प्रोजेक्ट लगाकर उसमें फंसे रह जाएंगे। दैट्स व्हाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एडवांस एंड ऑल। ये वो बहुत सारे लोग तो लिख कर ही लगा देते हैं उधार अगली दुकान पे, है ना, तो दैट्स व्हाई दे पेस्ट दिस थिंग। अच्छी है, चलिए आगे आते हैं। One is the assets turnover ratio, that says what, the fixed asset turnover ratio. Now we check कि मेरे fixed assets के against क्या क्या हो रहा है, right, या total assets के against, या turnover ratio जनरली हम sales के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, sales क्या क्या proportion बन रहा है, turnover जो हम देखते हैं sales को भी मान लेते हैं, sales हमारी किस बेस पे हो रही है, कितनी हो रही है, that we keep on finding. सो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की हम प्रोपोर्शन क्या बनाएंगे, सेल्स इज टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं, दैट इज नोन एज द एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सेल्स के अगेंस्ट कितनी हो रही हैं, फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट कितनी हो रही हैं, या फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो में क्या चेक करेंगे, सेल्स अगेंस्ट द टोटल एसेट, राइट। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में देख रहे हैं, सिर्फ फिक्स एसेट्स कंसीडर करेंगे, ओनली फिक्स एसेट्स, वी वोंट कंसीडर द करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट हमारी सेल्स कितनी हो जाती हैं, फिर हम कह रहे हैं टोटल एसेट्स के अगेंस्ट सेल्स कितनी हो जाती हैं, फिर हम कह रहे हैं कि द सेल्स अगेंस्ट द कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अगेंस्ट द कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी इसको बोल देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है, कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, सेल्स के लिए कितना पैसा लगाया हुआ है, या फिर वर्किंग कैपिटल कितना है आपका, राइट। या तो कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होगा कि आपने कितना कैपिटल लगाया हुआ है अगेंस्ट दी सेल्स, पैसे कितने लगाए हुए हैं, राइट। या फिर आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल कितना लगा हुआ है अगेंस्ट दी सेल्स। सेल्स से मान लो 10,000 की सेल हो रही है और आपका वर्किंग कैपिटल जो निकल के आ रहा है दैट इज से 10,000 20,000 मान लीजिए, वो कैसे निकला होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कितने आपके से, मान लो करंट एसेट्स आपके हैं 40,000 और करंट लायबिलिटीज आपकी हैं 20,000, तो एक्सेस आपके पास कितना आ गया, करंट एसेट्स ज्यादा कितने हैं, करंट लायबिलिटी सारी पे ऑफ करने के बाद 20,000 बचे हुए हैं। अब 20,000 जो आपके पास बचते हैं, मतलब लिक्विडिटी बचती है एक आपके पास, तो उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी कर पाते हैं आप, दैट यू ऑलवेज कंसिडर, उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी कर पाते हैं वो आप चेक करते हैं। ये बेटा क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। ये बड़ा धीमे वाला यस था। यस I सर, understand. यस सर। My point is, आप
एक तो ये चेक करते हैं कि मेरे पास फिक्स एसेट कितने पड़े हुए हैं और उसके अगेंस्ट सेल कितनी कर पा रहा हूँ। फिक्स एसेट का क्या मतलब होता है, कंपनी हमेशा ये देखती है कि मेरे पास कितने का माल लगा पड़ा है। मतलब मैंने फैक्ट्री से, मान लो फैक्ट्री में मशीनरी लगा रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग में मेरा फिक्स एसेट हो गई, मशीनरी में मेरी फिक्स एसेट हो गई, राइट, और फिक्सचर्स भी उसमें फिक्स एसेट हो गए। ये सारा मैंने लगा रखा है माल, मान लो मैंने 1 करोड़ का एसेट लगा रखा है, और सेल में अगर तो मैं मिनिमम, इसका मतलब मुझे 10 करोड़ का अगर माल लगा रखा है तो मिनिमम मेरी 1 करोड़ की सेल तो होनी चाहिए। अगर 10,000 की सेल हो रही है तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कीप ऑन चेकिंग कि आपकी सेल, प्रोपोर्शनेट सेल कितनी हो रही है। तो उसमें एक रेशो बननी चाहिए आपके पास। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके अगेंस्ट सेल्स कितनी हो रही है। से मान लीजिए बड़े लेवल पे अगर आप समझना चाहते हैं, मेट्रो है, मेट्रो की फंडिंग हम पूरी बाहर से करवा रहे हैं, मान लीजिए जापानीज बैंक से। आपने पढ़ा होगा वहां पे भी 80% लोन जो है हमने जापान से लिया है, जापान बैंक से लिया है ना। आपने कई जगह मेट्रो स्टेशन पे पढ़ा होगा। तो मान लीजिए हमने 1,000 करोड़ जो है ले लिया उनसे लोन, उसका पूरा एसेट ही लिया होगा। एसेट क्या लिया होगा? रेल ट्रैक बिछाया होगा, रेलवे स्टेशन बनाए होंगे, और बाकी जो आपकी ट्रेन्स दौड़ रही हैं, दैट मेट्रो, राइट। अब आप ये चेक करेंगे कि इसमें सेल कितनी हो रही है। एवरीबडी नोज दैट कि एक दिन की राइडरशिप कितनी है मेट्रो की, 40 लाख एक दिन में लोग ट्रेवल कर लेते हैं। मेट्रो की हाईएस्ट जो है 44 लाख गई अब तक। तो 40 लाख लोग एक दिन में मेट्रो में ट्रेवल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन एन एवरेज कितना पैसा सेल हो गई मेरी एक दिन की? अगर 10 रुपए की भी टिकट मानूं, मिनिमम टिकट ही 10 रुपए की है सर। यस, मान लीजिए मिनिमम के मैं ऊपर चल रहा हूं, मिनिमम लोग 40 लाख लोग 10 रुपए की टिकट लेते हैं। मिनिमम पे चल रहा हूं, एवरेज पे नहीं मैं जा रहा हूं, मिनिमम पे जा रहा हूं। तो मेरी सेल कितने की हो गई एक दिन की? एक दिन की सेल कितनी होगी? 4 करोड़। 4 करोड़। इसका मतलब 4 करोड़ रुपए आ जाता है मेरे पास एक दिन का। नाउ आई विल चेक कि एक महीने में कितना आ जाता है। तो एक महीना मैं ये चेक करूंगा, तो मैं ये चेक करूंगा कि 1,000 करोड़ में कितनी देर में पे ऑफ कर दूंगा। यही तो चेक करना पड़ेगा ना मुझे, कि वो जो मैंने एसेट 1,000 करोड़ का लगा रखा है उसके अगेंस्ट मेरी सेल जो मैं कर रहा हूं वो पैसे कल रिकवर भी कर पाऊंगा। तो कितनी देर में कर पाऊंगा? वो कह रहे हैं अभी तक तो ये कह रहे हैं कि हम 20 साल में रिकवर करेंगे वो पैसा। किस बेस पे रिकवर किया, चेक किया होगा? सेल के बेस पर, कि इतने की मेरी सेल डेली बेस पे चल रही है, इतनी मंथली सेल चल रही है, इतनी ईयरली सेल चल रही है, इतनी 20 साल में सेल हो जाएगी, तो इतने में पैसे पे ऑफ कर दूंगा। दैट मींस इक्विवेलेंट टू टोटल एसेट में पे ऑफ कर दूंगा। गॉट माय पॉइंट? सो वी कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग। इज दैट फाइन? सेम थिंग हैपेंस विद डीटीसी। डीटीसी में 10 लाख लोग एक दिन में ट्रेवल कर लेते हैं। तो डीटीसी वाले भी अपने चेक कर रहे हैं एसेट्स क्या हैं डीटीसी के। बसेस। तो बसेस में जो उसने पैसा लगाया हुआ है, दैट मींस टोटल बस का जो बसेस की जो प्राइस है वो, और अगेंस्ट दी सेल्स, अब उसकी 5 रुपए की टिकट लगा लीजिए एवरेजली, तो 50 लाख रुपए उसका डेली बेस पर आता है। तो ये प्रोपोर्शन वो लगाकर चेक करेगा कि कितनी देर में मेरा ये जो टोटल एसेट लगा हुआ है, ये कितनी देर में इतना पैसा मैं कमा लूंगा। दे कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग। इज दैट फाइन? आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है जी। बट इसमें करंट एसेट्स नहीं लिए हुए मान लो आपने, ठीक है। इन द फर्स्ट केस, सेकंड केस में सारे एसेट्स ले लिए, सारे टोटल। और थर्ड में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितना भी पैसा लगाया है, नॉट ओनली एसेट्स, जितना भी पैसा लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस जितना भी पैसा लगाया। और सेल कितनी हो रही है। आप जब कभी भी किसी भी नए बिजनेस को खोलते हैं तो आप उससे पूछते हैं, हाँ भाई कितना पैसा लगाया तूने? वो कहता है मैंने तो 1 करोड़ रुपए लगा दिया। बोला सेल कितनी हो रही है? सेल तो जी हो जाती है महीने की कोई 10,000 रुपये। वो कहोगे अरे बेकार है, फिर क्या फायदा, 1 करोड़ रुपए लगा के 10,000 कमा पा रहे हो। व्हाट इज यूज ऑफ इट, राइट? सो ये आप नॉर्मल वे में भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल वे में इसको यूज नहीं करते इस रेशो को। एवरीबडी यूज दिस रेशो, बट अभी आपको थोड़ी वो टफ लग रही है बिकॉज हम लिखने में आपको थोड़ी वो लग रही है। दैट्स द ओनली रीजन।
Okay, so the point here is what is the profitability ratio. इसके मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको करवाऊंगा. टुमारो वी विल कवर अप द प्रैक्टिकल ऑफ दिस, एंड एक हमारा प्रैक्टिकल रह गया था प्रीवियस चैप्टर का. बोथ ऑफ द प्रैक्टिकल्स वी विल कवर टुमारो, राइट. सो आज थोड़ा थ्योरेटिकल Okay, बेस sir. समझिए सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, राइट. सो ओके सर. So, one is the profitability ratio. अब ये profitability क्या चीज है? Profitability is one is कि हम अभी तक देख रहे थे कि मेरी सेल कितनी हो रही है अगेंस्ट दी एसेट्स. अब मैं चेक करूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है. एक तो है कि माल बिक कितना रहा है. सेल्स क्या होती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू प्राइस. क्या बनेगी? रेवेन्यू कह लो उसको या सेल्स कह लो, राइट. क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बिक रही है, इनटू प्राइस, वो तो हो गई आपकी कि सेल कितने की हो रही है. बट उसमें से प्रॉफिट का पार्ट कितना है? हम अभी मैं जो बात कर रहा था, से मान लो कि 10 रुपए की आपने टिकट लगाई है, तो 10 रुपए में 10 रुपए तो टोटल के टोटल 10 रुपए तो आपके प्रॉफिट नहीं हो सकते ना. उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे होगे या 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहे होगे. So the profit part is very important. So how much is your profit margin is important. So sales में हम always check कि what is my profit levels in that. So what we will do? In that case we will check what is my net profit. तो ROI हम उसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आप आजकल हर कोई चेक कर रहा है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक मार्केट एनीवेयर, आप जहां कहीं भी लगाएंगे पैसे तो आप वहां चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है मेरे लिए? कि कितना पैसा लगाया है, टोटल पैसा कितना लगाया आपने. ऑलराइट. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ये तो आप नॉर्मल भी पढ़ते आएंगे, कितना पैसा, कितना परसेंटेज आप कमा रहे हैं, है ना. ये तो आमतौर पे आप पढ़ते आए हैं. अब इसको वो कह रहा है ये भी एक 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. किन किन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है? वन इज नेट प्रॉफिट इज टू सेल्स, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट मार्जिन. सेल्स में मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने अभी बात जिसके बारे में मैं कर रहा था कि पर सेल मेरा नेट प्रॉफिट कितना है सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है. एक तो ये देखेंगे. सेल का क्या मतलब है कि कितने का माल बिका. मान लो 10 रुपए की चीज बिकी तो उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो इट विल बी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू व्हाट? सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स. अब वो हमने कहां से लिया है? यहां हमने अभी कवर किया था सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, दैट इज नोन एज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. तो हम क्या करेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, और टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं इसको, राइट. सो दिस इज ए टोटल ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एंड इन्वेस्टमेंट टर्नओवर. ऑलराइट, इज दैट फाइन? Yes, sir. तो 2 चीजों को बेटा हम देख रहे हैं. वन इज कि जितनी सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना है, और जितनी सेल हो रही है उस वो कितने एसेट्स के अगेंस्ट हो जाती है, वो हम पहले पढ़कर आए हैं. तो दैट वी कंपेयर. तो ये नीचे वाले में सर ये नीचे वाले में फिर आगे इनटू 100 भी तो होना चाहिए ना सर? हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100. यस, एवरीवेयर इट विल बी 100. अगर आप परसेंटेजेस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट विल बी 100. हाँ, क्योंकि रिटर्न तो परसेंटेज में ही बोलेंगे सर. हाँ, रिटर्न, यस, वी कैलकुलेट द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ percentages only. Yes, that's right. One is EPS. अब EPS क्या चीज है? अर्निंग पर शेयर. जितने भी लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है वो हमेशा जानना चाहते हैं कि पर शेयर मेरा प्रॉफिट कितना आया, अर्निंग कितनी आई, पैसा कितना आया. अब मैंने पहले बताया जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो फेस वैल्यू होती है उसकी. फेस वैल्यू क्या होती है? कि जितने पर इशू किया गया था. So all calculations we generally do it on the base of कि what was my purchase price or the face value, right? What was the my face value of it? हम उसके comparison में ही करते हैं.
बट जब कंपनी आपके लिए कैलकुलेट करके देती है या हम कंपनी के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, तब हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना मेरा पर शेयर कितना, मान लो कि 10,000 रुपए इस बार अर्निंग हुई है और 1,000 शेयर होल्डर हैं, तो सबको बांट दिए, तो सबको कितने रुपए आए होंगे? 10 रुपए ईच। इसका मतलब पर शेयर मेरे को कितने मिले होंगे? 10 रुपए, राइट? इज दैट फाइन? कंपनी की कमाई 10,000 रुपए की हुई है, 1,000 लोग जो हैं सब ने एक एक शेयर खरीदा है, 10,000 लोग, 1,000 लोग हैं मेरे पास जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगाए हैं, मेरी कंपनी में पैसे लगाए हैं। हर किसी को मैंने डिवाइड कर दिए इक्वली, तो 10,000 रुपए थे मेरे पास, 1,000 लोगों में बांट दिए, तो 10 रुपए पर शेयर सबको डिविडेंड मिल जाएगा। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई, मतलब कमाई पर शेयर कितनी हो गई? 10 रुपए। नेचुरल सी बात है। बड़े यहां तक समझ में आई है बात? जी सर। यस सर। मेरी कमाई बची थी 10,000 सब कुछ पे ऑफ करने के बाद, ठीक है? वो 1,000 लोगों में बांट दी, क्योंकि 1,000 मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनमें बांट दी। तो पर शेयर कितने मिले सबको? 10-10 रुपए। दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। हर शेयर के पीछे कितने रुपए कमाए आपने, दैट इज नोन एज ईपीएस। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो आप जरूर चेक कर रहे होंगे इसको, या तो आप ईपीएस चेक करते हैं या डीपीएस चेक करते हैं, डिविडेंड पर शेयर कितना डिक्लेयर हुआ है, या आप चेक करते हैं कि अर्निंग कितनी शेयर हुई है अमंग दी शेयर होल्डर्स, राइट? तो ईपीएस क्या सिखाएगा हमें? अर्निंग पर शेयर विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने पहले ही बताया था, ये प्रॉफिट कौन सा लेवल का होगा? जिसमें से कि हम टैक्स भी निकाल चुके होंगे, इंटरेस्ट भी निकाल चुके होंगे और प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे ऑफ कर चुके होंगे। दिस विल ओनली बी द रेजिडुअल वैल्यू या रेजिडुअल इनकम बची होगी, जो हमारे पास बचा खुचा पैसा होगा। किस किस के बाद बचा खुचा होगा? एक तो टैक्स भी पे कर चुके होंगे उस प्रॉफिट में से, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी पे कर चुके होंगे, उस प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि फिक्स्ड होता है वो भी पे ऑफ कर चुके होंगे। वो जो पैसा बचेगा वो सभी शेयर होल्डर्स में बटेगा। सिंपल। इज दैट फाइन? यस सर। कौन सा प्रॉफिट Yes, sir. बटेगा? कौन सा प्रॉफिट बटेगा? जिसमें से इंटरेस्ट भी पे कर चुके होंगे, जिसमें से हम टैक्स भी पे कर चुके होंगे और जिसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर चुके होंगे, राइट? इज दैट फाइन? So it will be what? Net profit after tax and preference dividend divided by number of equity shareholders. इसका फॉर्मूला आप समझिए, ये EBIT लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT आपने नॉर्मल आजकल पढ़ते होंगे आप। आजकल आप ज्यादा आप EBITDA पढ़ते होंगे वैसे, है ना? वो EBITDA होता है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन, ठीक है? उस पे भी आ रहा हूं, अगर कोई एक आधे क्वेश्चन में आ रहा होगा तो वो भी मैं करवाऊंगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द EBIT। EBIT मींस व्हाट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो आगे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। उसमें से वो क्या कह रहा है? एक्सक्लूड कर दीजिए इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। ये तो ब्रैकेट में रख लिया आपने। दैट मींस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट कर लिया पहले आपने। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी व्हाट? 1 माइनस टी। दिस इज 1 माइनस टी बेसिकली, दैट इज 1 माइनस टैक्स, है ना? तो से दैट विल बी व्हाट? से आपका टैक्स चल रहा है, से मान लो 30% कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा है आपका 30%। सो इट विल बी व्हाट? 1 minus 0.3, so the remaining will be what? 0.7. So that will be multiplied by the remaining income, all right? Then divided by number of shares, right? Is that fine? सर वो 1 है या आई है इंटरेस्ट? वो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट में से भी टैक्स एक्सक्लूड कर लेंगे, वो भी चल जाएगा आपके लिए। बट ये 1 लेकर चलेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, सॉल्व करना इजी रहेगा। 1 लीजिए आप इसको, 1
1 माइनस टैक्स लीजिए आप. इज दैट फाइन? यस अब 1 लीजिए. अब छोड़िए, आई के चक्कर में मत पड़िए. 1 लीजिए. ठीक है जी, इजी कैलकुलेशन आपके लिए. क्यों बता रहा हूं मैं, आपको बताता हूं. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया आपके पास. आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया. देखिए बेटा, इंटरेस्ट को हम क्यों बढ़ाते हैं, मैंने पहले बताया था, इट्स अ डबल एज वेपन. इंटरेस्ट बढ़ाने से बेनिफिट क्या निकल के आता है? इंटरेस्ट बढ़ाने से मेरा टैक्स बचता है. इसको हम टैक्स शील्ड भी बोलते हैं. इंटरेस्ट को हम टैक्स शील्ड भी बोलते हैं. इसलिए उसने आई लिया है यहां पे. मैं बता देता हूं व्हाई दे आर टेकिंग अप आई. बिकॉज द रीजन बीइंग कि इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा ना, उतना टैक्स आपका कम होता चला जाता है. यस क्योंकि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उसमें उसमें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसमें आपकी कंपनी कोई सेविंग नहीं होगी. बट इसमें कंपनी की सेविंग हो जाएगी. इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा तो टैक्स कम होता रहेगा. राइट? सो दैट्स व्हाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय से 0.7 ही बचेगा अगर आपका 30% टैक्स में चला जाएगा. राइट? सो 0.7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा. दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब वो ये कह रहा है कि ये तो केस था अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जा रहा है. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जा रहा है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जा रहा है तो EBIT माइनस इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय द आफ्टर टैक्स, देन माइनस, मैंने पहले बताया टैक्स पे ऑफ करने के बाद अपोर्शनमेंट आती है. दिस इज नोन एज अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट का काम क्या है? मतलब बांटना. बांट रहे हैं आप. डिविडेंड क्या होगा? बांटेंगे. प्रेफरेंस डिविडेंड आप बांटेंगे. सो बट चाहे वो फिक्स हो, चाहे कितना भी हो, फिक्स कितना हो, मान लो आपने 15% पे डिविडेंड, वो 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड पे, तो दैट यू विल एक्सक्लूड. देन इट विल बी व्हाट लेफ्ट आउट अमाउंट, that will be distributed among the number of equity shares. It will be divided among the number of equity shares. कितने आपके equity shares कितने हैं, उतनों में बांट दिया जाएगा ये पैसा. Is that fine? Is that fine? Yes sir. अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए अभी मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया है. राइट? मेरी 12,000 रुपए की इनकम हुई है, मान लीजिए. इंटरेस्ट पे नहीं किया है. इंटरेस्ट मान लीजिए 2,000 जाना है, 10,000 से मैं बच गया, 10,000 रह गए मेरे पास. से टैक्स मेरा 30% है, तो चाहे आप सिंपल कर सकते हैं कि 3,000 पे लिख लीजिए, या टैक्स आप सीधा लिख लीजिए भी 3,000 पे लिख लें आप, या आप सिंपल कर सकते हैं कि 100 माइनस 30, 0.70 रह गया, 70% रह गया, या उसको 0.7 मान लीजिए. तो 0.7 इंटू 10,000 कितना बचा? 7,000 रुपीज. राइट? तो आपका अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रह गया? 7,000 रुपीज. आइदर दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स, और अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी बच रहा है, से मान लो वो भी 1,000 रुपया है. राइट? तो आपने 1,000 और दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? अब कितने बचे? ध्यान से नहीं सुन रहे आप. 6,000. यस. और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं आपके पास? मान लीजिए 1,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं आपके पास. तो पर शेयर होल्डर कितना मिलेगा? मैथमेटिक्स में मैंने सुना है IT वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं. 6 रुपीज पर शेयर होल्डर मिलेगा. सिंपल. दैट मीन्स मेरी अर्निंग पर शेयर, अगर मैं एक शेयर खरीदूंगा तो मेरी कमाई कितनी होगी? 6 रुपए मेरी कमाई होगी. इज दैट फाइन? Yes sir. ठीक है जी. मैं एक शेयर खरीदूंगा तो मुझे 6 रुपए मिलेंगे, कमाई मेरी होगी. दैट्स द थिंग. और हर साल वो चेंज होगी. क्यों चेंज होगी? इंटरेस्ट, आपकी अर्निंग चेंज होगी तो आपका इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है, आपका टैक्स रेट भी चेंज हो सकता है, सरकार चेंज कर सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो अर्निंग पर शेयर, दिस इज द ऑल अबाउट द अर्निंग पर शेयर. इज दैट फाइन बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will check
हाउ मच इज माय प्रॉफिट अगेंस्ट द सेल्स, वो तो हर कोई चेक करता है, आज से नहीं, आप ये 7th 8th 9th 10th की क्लासेस में भी चेक करते आए होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये आप तब भी करते आए होंगे, अब भी चेक कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन पहले जो करते थे सर 7/8 में ना, उसमें प्रॉफिट बाय कॉस्ट करते थे, कॉस्ट प्राइस इनटू तो चाहे वो कॉस्ट कर तो सेल्स जो है आप, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई सर, लेकिन है बात वही है सर, लगभग बात वही है। देखो लगभग हम यही देख रहे हैं कितने पे कितना कमाया, बस प्रॉफिट रेशियोज जो हैं वो यही बता रही हैं हमें, या सेल्स रेशियो है, टर्नओवर रेशियोज का मतलब है सेल्स रेशियोज, और अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट रेशियोज की, तो हम प्रॉफिट चेक कर रहे हैं कितने पे कितना प्रॉफिट आया, yes, पर शेयर कितना प्रॉफिट आया, सेल्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आया, एसेट्स के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आया, यही चेक करना है, राइट। बस आपने नाम से अंदाजा लगा लेना है भी ये किसके अगेंस्ट चेक करना है, राइट। से अब जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर सकते हैं, राइट, इनटू 100, तो परसेंटेज में निकल आएगा आपके पास। रिटर्न ऑन एसेट्स है, अगर आप चेक कर रहे हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, किसमें क्या लेना है इज इंपॉर्टेंट। So net profit after tax divided by total assets, that is known as the return on assets, कि जितने मैंने एसेट्स लगाए हुए हैं, टोटल एसेट्स लगाए हुए हैं, उनके अगेंस्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो चेक कर रहे हैं इनटू 100। अगर यही टर्नओवर रेशियो होती तो क्या चेक कर रहे होते? अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स चेक कर रहे हैं, अगर ये टर्नओवर रेशियो होती अगेंस्ट दी टोटल एसेट, तो क्या होता? तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होते। सिंपल है। टर्नओवर मैंने कहा पहले बताया, अभी टर्नओवर चेक कर रहे हो मीन सेल्स चेक कर रहे हो, सेल्स के अगेंस्ट सारी चीजें चेक हो रही है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता। अगर ये रिटर्न ऑन एसेट है, अभी हर टोटल एसेट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं वो हमने अगर चेक करना है, तो इट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ इट। देन द return on equity shareholders fund or the net worth, so profit divided